اللهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. O Allah, you are the source of peace and from you comes peace. Blessed are you, O possessor ma- of majesty and honor. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. O Allah, we are sending salutations on Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his family, and also sending mercy and blessings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Umar Rizwan Naim from Ayan Institute of Medical Sciences, batch of 2K22, anchoring for today's USMLE guidance session. Be the hardest person working, that's how you can separate yourself from the competition. I welcome you all today's USMLE guidance webinar. This webinar is being hosted by IMSA, Initiative of Medicos for Service and Academics. Let me give a brief introduction about IMSA. IMSA is a non-profit organization all over Telangana, working towards self-improvement and development of society. IMSA works for academic, personality development, extracurricular activities for medicos, and also work for social welfare. The first USMLE webinar will be on Is USMLE right for me? How is it different from PLAB, NEET PG, next, etc.? Is it too late or too early to start my journey? Where exactly is starting line? At the end of this session, we will have question and answer session also. So please wait till end. Attend with all consciousness, and I am sure this session will benefit us. Our speaker for today is Dr. Mohammad Abdul Hafiz. He is from Usmania Medical College, batch of 2018. He has cleared his step 1 and step 2, and his field of interest is internal medicine. Dr. Hafiz's personal experience in tackling USMLE lends a unique and invaluable insight to aid in your preparation. I welcome Dr. Mohammad Abdul Hafiz to take over the session. Thank you, Amar. Assalamu alaikum, everyone. Am I audible? Yes, you're audible. Yeah. Uh, okay, thank you, Amar, for that lovely introduction. Uh, ठीक है, तो I'll start sharing my screen and we'll begin then. Is it fine, Amar? Yes, sir. Yeah. तो screen share हो रही है, Amar? जी सर. Hello. जी सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है. Yeah. Okay, Omar. So if anyone puts any question in the chat box, can you please interrupt me in the between and tell me about it? जी श्योर. Yeah. So चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. First and foremost, I welcome you all for this webinar. हाँ, तो like you can see the first paper of my presentation. It's titled USMLE and you. Uh, the basic intention of putting this as the first page was ये बात सबको समझ में आनी चाहिए कि USMLE is not like NEET PG और NEXT, जहाँ पे एक standard set of protocol या फिर steps है कि you follow these steps in order and you can match successfully. ठीक है. For NEET PG या फिर NEXT, you have many platforms like Marrow है, DAMS है, Bhatia है. Even if not all that, you have your seniors जो कि already अल्हम्दुलिल्लाह वो ज्यादा अच्छे ranks और marks लाके बहुत अच्छी जगह PG कर रहे हैं. So it is very easy कि you just have to follow their footsteps and you'll end up in any one of the good programs inshallah. But USMLE is a very specifically tailored journey for you. आप ये नहीं बोल सकते कि just because that person did that thing अब मैं भी exactly वही करूंगा and मुझे भी exactly वही result आएगा. ठीक है. So, okay, Behrhal, let's get started with the presentation. I hope you all will benefit from this, inshallah. Yeah, okay. So the overview of today's discussion will be based on 5 sessions.
In the first part, I will be discussing about the overview of the entire USMLE journey. Steps क्या है, how to approach them, what other things that we have to do apart from steps. So basically, from your step one to your residency, I'll just give a brief overview. Okay. Then our second session, so our second point will be on where exactly is the starting line. Like I said, ये journey सबके लिए अलग-अलग है. People like me and my friend, we started preparing for USMLE when we were in the late second or early third year. But I'm very sure कि there are many of you जो कि internship करने के बाद या फिर even after doing the residency या फिर even after doing 10 to 15 years of practice, now they want to shift abroad. So the starting line exactly कहाँ है? Where should I put my feet and where should I and when should I march forward? That we'll be discussing. And then another very important thing, am I already too late? अब जैसे कि जस्ट बिकॉज मैं सेकंड या थर्ड ईयर में शुरू करा, अब फाइनल ईयर स्टूडेंट शुड नॉट गेट डिस्करेज कि अरे मैं तो फाइनल ईयर में अभी आ गया और मैं अभी शुरू भी नहीं करा कुछ. इज इट ऑलरेडी टू लेट फॉर मी? नहीं. एंड विल डिस्कस ऑन दैट टू. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट आई थिंक ऑफ दिस डिस्कशन इज गोइंग टू बी a personalized discussion ki is USMLE for me or not. And the last we'll have a Q&A session. Okay. Before we start, I'll just like to give a brief introduction about myself. Assalamu alaikum. My name is Dr. Muhammad Abdul Hafiz, and I'm from 2K18 batch of Osmania Medical College. Uh, okay. So I started my USMLE journey in late 2021. जैसे कि अगस्त या सितंबर 2021 में, immediately after lockdown ended and we wrote our second year exams, मैं जब decide करा कि I have to do this USMLE journey and I have to get my step one as soon as possible. So I spent another 3 to 4 months preparing for my step one, and I gave my step one in early 2022. January or February, I wrote my step one. And then 2023 and 2024, these 2 years, that is my final year and most of my internship, I spent these 2 years in very crucial CV building. अब CV building क्या है? अच्छा, first and foremost CV ही क्या है? We'll understand this in due course of time. And then alhamdulillah, I completed my step 2 very recently, like barely 1 week हो रहा मैं step 2 देके. So I'm still waiting for the results, hoping आप सब दुआ करेंगे. Okay. And inshallah, 28th of this month, I'll be going to do my electives. Alhamdulillah, I've planned out a few electives and I have to plan out a few else. And inshallah, अगर सब कुछ ठीक रहा, आप सबकी दुआएं रहें, तो I will apply for this upcoming match cycle. Okay. So why is my journey unique? My journey is unique because people generally take at least 1 year after the internship to match. अब मोस्ट ऑफ माई सीनियर्स जो 16 एंड 17 बैच वाले हैं, वो लोग अब अप्लाई करने वाले हैं मैच के लिए, बट आई एम इन 18 बैच एंड आई आल्सो विल बी इंशाल्लाह अप्लाइंग इन दिस मैच साइकिल. तो व्हाट वाज डिफरेंट इन माय जर्नी, एक साल मेरा टाइम कैसे बचा, ये सब विल टॉक. ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग, ओवरव्यू ऑफ द यूएसएमएलई जर्नी. ठीक है. तो आई एम अज्यूमिंग ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएमएलई. If not, it stands for United States Medical Licensing Examination. ठीक है. तो why do you need to complete this examination? Why do you need to be certified in that aspect? बेसिकली अगर आपको यूएस में प्रैक्टिस करना है तो आपको वहां का लाइसेंसिंग एग्जाम लिखना पड़ता. इवन इंडिया हैज अ लाइसेंसिंग एग्जाम कॉल्ड एफएमजी. अगर इफ एनीवन डज देयर एमबीबीएस इन चाइना, यूक्रेन, Kyrgyzstan, they all have to come back to India and before they can practice they'll have to clear their FMG. तो बेसिकली क्योंकि हम भी कोई और फॉरेन कंट्री को जा रहे हैं, we'll have to clear their licensing exam which is called USMLE. ठीक है. तो अब यूएसएमएलई के लिए सबसे फेमस 3 स्टेप्स है. एवरीवन नोस अबाउट स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3. एंड आफ्टर दैट वी हैव द ईरास एप्लीकेशन. ठीक है. अच्छा उमर. जी. हेलो. जी. जी. ओके. व्हाट डू यू नो अबाउट स्टेप 1, उमर? स्टेप वन इंडिया के हिसाब से फर्स्ट एंड सेकंड प्रोफेशनल ईयर के सब्जेक्ट्स स्टेप वन में आते हैं. ओके. ओके, वेरी गुड. तो बेसिकली जैसा उमर कहे, स्टेप 1 टेस्ट योर प्री क्लिनिकल नॉलेज. ये वो लोग बस बोलने के लिए बोलते हैं. दिस इज वेरी फार अवे फ्रॉम द ट्रुथ. मतलब obviously the answers they will put will be in your preclinical knowledge, but the question stem, to understand the question stem you have to have clinical knowledge. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि बस आप अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के वास्ते अगर फर्स्ट एंड सेकंड ईयर पढ़ लिए तो यू कैन अपीयर फॉर योर स्टेप 1. ऐसा बिल्कुल नहीं है. यू विल हैव टू सिट एंड पुट इन एक्स्ट्रा टाइम where you can learn some clinical knowledge as well before you attempt for your step 1. ठीक है. Then we have step 2. Step 2 जो कि मैं बहुत recently clear करा.
स्टेप 2 इज वेरी 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 वास्ट कंपेयर टू योर स्टेप 1 और या फिर कोई भी और एग्जाम से भी कंपेयर कर लो आप। स्टेप 2 बहुत ज्यादा वास्ट है, बट द गुड पार्ट इज कि इट इज वेरी क्लिनिकल एंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड। मतलब they give you a situation in your exam where you have to imagine that you yourself are present at a situation and now you're going to decide what the next best step will be। और इसमें अच्छी बात ये है कि इट इज वेरी लॉजिकल बेस्ड। आपको ज्यादा चीज बट्टी मारने या फिर याद करने की जरूरत नहीं है। यू कैन जस्ट स्टीयर विथ योर बेसिक कॉमन सेंस इटसेल्फ। ठीक है, एंड देन वी हैव स्टेप 3। उमर, स्टेप 3 क्या रहता? Step 3 license। जी लाइसेंस, जस्ट लाइसेंस मिल जाता उसमें। नहीं नहीं, दैट इज अ वेरी बिग मिसकंसेप्शन जो कि जनरली अपने पीपल हु जस्ट स्टार्ट आउट हैव कि स्टेप 1 स्टेप 2 है, स्टेप 3 लाइसेंस है, वैसा नहीं है। स्टेप 3 इज आल्सो योर एग्जाम। ठीक है, ये स्टेप 3 में यू हैव स्टेप 3 इज अ 2 डे एग्जाम, डे 1 एंड डे 2। एंड स्टेप 3 इज ऑप्शनल। मतलब आप रेसिडेंसी में मैच होने के बाद भी स्टेप 3 दे सकते। मोस्ट ऑफ द यूएस रेसिडेंट्स दे डू दिस थिंग ओनली। मैच होने के बाद फर्स्ट ईयर में वो लोग ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद दे गिव दैट स्टेप 3। दैट इज परफेक्टली एक्सेप्टेबल। बट वी आर नॉन यूएस आईएमजीज। अच्छा, आईएमजी माने इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट। वी आर नॉन यूएस आईएमजीज, तो वी हैव टू हैव ऑल द एड्ज दैट वी कैन। So what some of the people what they're trying to do now is even before they submit their application, they're trying to complete this step 3 beforehand itself। ठीक है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास टाइम है आप करिए, अगर नहीं है तो इट्स मोर और लेस इनफ। आप रेसिडेंसी मैच होने के बाद भी कर सकते हैं। एंड द फाइनल स्टेप विल बी टू सबमिट योर ईरास एप्लीकेशन। ठीक है, तो व्हाट इज ईरास एप्लीकेशन? ईरास एप्लीकेशन इज बेसिकली योर सीवी। यो जो ईसीएफएमजी पोर्टल है, दैट इज मतलब जो यूएसएमएल वाले लोग हैं, दे विल गिव आउट योर फॉर्म। एक फॉर्म रहता है, उसमें दे हैव डिफरेंट सेक्शंस। उसमें यू हैव एन एकेडमिक सेक्शन, वॉलंटियरिंग वर्क सेक्शन, रिसर्च सेक्शन, स्टेप्स कोर्स। तो दे हैव दीस स्पेसिफिक 4 to 5 सेक्शंस एंड यू हैव टू फिल योर सेक्शन। मतलब आपको उसमें आपका सीवी बनाना है एंड यू हैव टू सबमिट इट टू वेरियस प्रोग्राम्स। ठीक है, तो दैट इज योर ईरास एप्लीकेशन। अभी आई नो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग दिख रहा होगा, एज वी डिस्कस फर्दर आपको आराम से सब समझ में आ जाता। ठीक है, ओके। तो दैट वाज जस्ट a crude talk on step exams। तो what apart from step exams do we have to do? आप बहुत सारे लोगों को मालूम ही होगा, there will be a very important aspect called research, volunteering, networking, and most of them all, the most important thing apart from exams is electives। तो electives क्या है? नो आइडिया। हेलो। जी, electives क्या है? नो आइडिया। ओके, तो electives माने when you submit your application to the colleges over there, na, they will basically want to see you already having some prior exposure in US clinical setting। मतलब अगर ये बंदा ऑलरेडी एक 2-3 महीने यूएस के हेल्थ के सिस्टम में काम करके है, तो ही विल बी इजियर फॉर अस टू ट्रेन। इफ इज एंटायरली न्यू, देन इसको जीरो से ट्रेन करना पड़ता, दैट विल बी अ डिफिकल्टी फॉर अस। तो इलेक्टिव इज बेसिकली एन इंटर्नशिप दैट यू गो टू द यूएस एंड डू। ठीक है, मतलब अब 28th मई को मैं जा रहा हूँ, आई विल बी लैंडिंग इन शिकागो। शिकागो में माउंट साइनाई हॉस्पिटल है, तो आई विल गो इनटू द माउंट साइनाई हॉस्पिटल एंड आई विल बी रोटेटिंग अंडर सो एंड सो फिजिशियन। तो दैट फिजिशियन विल ट्रेन मी या फिर ही लेट मी ऑब्जर्व व्हाटएवर ही इज डूइंग, हाउ डज द यूएस हेल्थ केयर सिस्टम एग्जैक्टली वर्क। तो देयर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रोटेशंस दैट यू कैन डू। एक आइडियली एटलीस्ट 3 months ऑफ एक्सपीरियंस रहा तो इट्स इनफ। बट इफ यू हैव 4, 5, 6, 7 months of experience, it is just adding to your CV। 3 से कम भी रहा तो there are people who have matched even without any experience also। उस पे बाद में आएंगे अपन। तो it is volunteering work, networking, research and electives। तो apart from step 1, step 2, step 3, आपको ये सब चीजें भी ध्यान में रखना है। Okay. Then apart from that, I was reading the questions that you guys sent in, and one of the major questions was repeated questions ये था कि total expense कितना आता, क्या रहता। तो आई वुड जस्ट लाइक टू एडवाइस यू ऑल कि डोंट व्यू इट एज एन एक्सपेंस। मतलब एक्सपेंस तो वो है जब खर्चा कर दिए एंड इट्स डन। आप अगर 1.5 लाख का आईफोन ले रहे हैं तो दैट इज एन एक्सपेंस। अगर आप 2 या 3 लाख की बाइक ले रहे हैं तो दैट इज एन एक्सपेंस। बट वॉट एवर यू पुट इन टू योर सेल्फ, बी इट योर हेल्थ या फिर बी इट योर एजुकेशन, दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। बिकॉज आप जितना भी यहाँ पे डालने वाले हैं, आपको विदाउट एनी डाउट 10 to 20 टाइम्स बढ़ के वापस आता। ठीक है,
तो ऑलवेज यूज दिस मोटो कि इट्स नॉट मनी यूज्ड, इट्स मनी इन्वेस्टेड। फिर भी फॉर द सेक ऑफ मॉनेटरी कंसिडरेशंस आपके जो है स्टेप एग्जाम्स की फीस, मतलब स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 तीनों मिला के इट विल बी क्लोज टू 2.9 lakhs। फर्स्ट स्टेप की फीस अबाउट 80,000 है, सेकंड की अराउंड 90 है, थर्ड की अराउंड 1 या 1.1 लाख कुछ है। तो टोटल इट विल बी अराउंड 2.7 to 3 लाख के बीच में आपकी सिर्फ और सिर्फ स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 की फीस आती। ठीक है। देन ज्यादा बड़ा खर्चा और दो जगह रहता बस, दैट इज electives एंड ईरास एप्लीकेशन। electives जैसे कि अभी समझाया मैं, यूएस में जाना है, वहां पे किसी के अंडर रोटेट करना है। तो आप लोग पूछ रहे होंगे अच्छा तो अगर हम काम कर रहे हैं तो पैसे हमारे को आना ना, उनको क्यों जा रहे हैं? नहीं, वैसा नहीं रहता। बेसिकली हम उनके लिए काम कर रहे हैं बिकॉज दे आर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी। और आजकल की दुनिया में कोई भी एथिक्स नहीं है कि फ्री में अपॉर्चुनिटी दे दे रहे हैं कि आओ और हमारे अंडर सीखो। तो वो लोग जो हमको सिखा रहे हैं उसके लिए दे एक्सपेक्ट अ फीस। एंड ऑन एन वेरी एवरेज, बहुत ऑन द लोअर लिमिट ऑफ एवरेज बात कर रहा हूँ मैं, ईच रोटेशन विल कॉस्ट यू अराउंड 1500 to $2,500। ठीक है। तो दैट इज इटसेल्फ इजीली मोर देन 2 lakhs के करीब आ जाता है आपको ये। दैट इज इफ यू गोइंग थ्रू एनी एजेंसी। अगर आपके ऑलरेडी कोई पहचानत के है वहां पे, कोई प्रोग्राम डायरेक्टर पहचानत के है या फिर कोई डॉक्टर है वहां पे पहचानत के हु इज विलिंग टू टीच यू फॉर फ्री, तो आपका बहुत ज्यादा खर्चा बच जाता है यहाँ पे। ठीक है। एंड देन लास्ट वी हैव ईरास एप्लीकेशन। ईरास एप्लीकेशन मतलब, अब इंडिया में व्हेन यू रोट योर नीट पीजी, नीट यूजी, यू गाइस मस्ट रिमेंबर कि यू हैव टू मेक अ लिस्ट ना, कि पहले हम उस्मानिया, देन गांधी, देन ईएसआई, देन काकतिया, सो एंड सो एंड सो एंड सो। तो इसमें भी बेसिकली यू हैव टू मेक अ लिस्ट लाइक दैट। बट ये लिस्ट बनाने के बाद आपको आपका ईरास एप्लीकेशन और आपका सीवी उन लोगों को फिजिकली मेल करना रहता। ऑनलाइन नहीं चलता ये, आपको मेल करना रहता। और वो लोग वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के भी पैसे लेते। तो ईच प्रोग्राम टेक्स अबाउट 11 to $11 या फिर $9 कुछ होता वो। एंड मोस्ट ऑफ द IMGs दे अप्लाई टू अराउंड 200 प्रोग्राम्स। तो टोटल खर्चा अगेन इट कम्स टू अबाउट इजिली 3 to 4 lakhs। तो इफ आई टेल टोटल खर्चा विल इजीली बी बियॉन्ड ऑफ 13 to 16 lakhs, दिस इज स्टिल एन अंडरस्टेटमेंट। देयर आर मेनी पीपल जो कि पूरा खर्चा बताते हैं ओवर 25 lakhs also, and there are very few people who spend less than 15 lakhs also। but to be on the safe side, आप एक estimate of 13 to 16 lakhs के बीच में लेके चल सकते हैं। that will be your entire expenditure on your, from starting at step 1 to giving your application। और फिर एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद आप मैच होते नहीं होते, दैट इज स्टिल अनदर मिस्ट्री। अगर मैच नहीं हुए तो नेक्स्ट ईयर अगेन यू हैव टू मेल ऑल दोस प्रोग्राम्स अगेन। तो दैट डबल्स योर इन्वेस्टमेंट। ओके, यहाँ तक कुछ डाउट? अरे हाँ, यार तो क्लियर है ना? Yes, sir, it's clear, sir. या आई एम गोइंग टू फास्ट? कुछ लोग कुछ गिव सम फीडबैक ना, मैं उस सबसे आपसे कंटिन्यू कर सकता हूँ। Sir, there's a question in the chat box. We have to give exam again। नहीं रशियन, एग्जाम कैसे नहीं रहने हैं। you have 1 year टाइम जहाँ पे आप आपका सीवी और बेटर कर सकते हैं। या फिर सीवी से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कोई है तो दैट इज नेटवर्किंग। देखिए ये नेटवर्किंग किस चीज को बोलते हैं, आई गेट टू इट। बट आप एक साल का टाइम है, आप वो एक साल में या तो आप और रिलेशन करो, फिर और रिसर्च करो, फिर और नेटवर्क्स बनाओ। ऐसा करके आप अपना सीवी और अप्लाई करो। आपको और एग्जाम से जरूरत नहीं है। ओके, कोई और क्वेश्चन हैं यहाँ पे? सर इज देयर एनी स्कॉलरशिप प्रोसेस government and private, for both government and private? nahi ma, as much as I know there is no scholarship process as such। most more or less आप ये खर्च अपने पॉकेट से ही उठाना है। एंड लाइक आई सेड, अच्छा आई टेल यू माय पर्सनल स्टोरी। मैं सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में कंसीडर कर रहा था कि आई गिव यूएस से मिली हुई है। बट देन आई थॉट कि मेरे घर पे इतनी फाइनेंशियलिटी नहीं है कि मैं इसको अफोर्ड कर सकूं। लाइक बेसिकली बस हैंड टू माउथ वाला मसला था, तो आई वाज वेरी रिलक्टेंट। सर सर बट सेकंड ईयर खत्म आपकी हुआ। आवाज वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, बहुत अच्छा क्लियर नहीं है। ओके। व्हाट डू आई डू अबाउट दिस? नेटवर्क तो मेरा स्ट्रांग ही आ रहा है यहाँ पे। इज इट क्लियर नाउ? अच्छा, उमर, इज इट क्लियर?
जी अब क्लियर है। चैट में कैन समवन लेट मी नो इट्स स्टिल ब्रेकिंग। अच्छा, नहीं नहीं अभी क्लियर है। ओके, It's लेट clear जस्ट now, गिव मी sir. 1 मिनट ना, I'll क्या? It's clear now. ओह चलो, नाइस नाइस, ठीक है। ठीक है, तो फ्रॉम वेयर शुड आई कंटिन्यू? You are sharing your story, sir. स्कॉलरशिप के या क्वेश्चन से। या जी जी, स्कॉलरशिप का क्वेश्चन चल रहा था। तो नहीं माँ, स्कॉलरशिप तो कुछ नहीं रहती, बट हाँ, तो मैं कह रहा था कि इवन आई वाज वेरी रिलक्टेंट टू कंटिन्यू माय यूएसएमएलई, बट एट द एंड ऑफ माय सेकंड ईयर आई स्पोक टू माय फादर रिगार्डिंग दिस, कि देखिए अब्बूजान, मेरे को ये करना दिल बोल रहा, बट आई नो घर के हालत ऐसे हैं, व्हाट वुड यू रिकमेंड? तो व्हाट ही टोल्ड मी वाज द एंटायर बेसिस कि मैं जर्नी क्यों स्टार्ट करा। My father told me कि whatever I have earned till now, it is only so that you people can have a better life for yourselves. अगर ये प्रोसेस में अगर मेरे थोड़े पैसे लग जा रहे हैं, तो आई विल बी ऑनर्ड, यूज दिस वर्ड, कि अगर तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे आने वाले लोगों की जिंदगी मेरे पैसे से बेटर हो सक रही, तो आई विल बी ऑनर्ड डूइंग दैट। तो इससे मेरे को बात ये भी समझ में आई कि आप इतने सेल्फिश होके ये डिसीजन नहीं ले सकते कि मैं माय पेरेंट्स आर नॉट केपेबल इनफ ऑफ सेंडिंग मी अब्रॉड। हाँ, हाँ, ये इट इज़ वेरी गुड टू बी कंसिडरेट कि हाँ, घर में शायद हालात उतने साफ नहीं हैं, बट आई विल ऑलवेज़ एडवाइस यू, प्लीज़ गो एंड सिट एंड टॉक विद योर फादर और योर मदर, कि देखिए ये है, इसका एक्सपेक्टेड खर्चा इतना आता, बट ऐसा भी नहीं है कि एक साथ आपको पूरे पैसे डालना है ना। आप बस स्टेप 1 1 साल लिखते, फिर 1 साल के बाद आप स्टेप 2 लिखते, फिर 1 साल के बाद अब आप जो है यू गो टू यूएस फॉर electives, देन आफ्टर दैट यू डू योर एप्लीकेशन, तो यू विल हैव इनफ टाइम। बट स्कॉलरशिप का तो कुछ आई डोंट नो इफ देयर इज एनी स्कोप फॉर स्कॉलरशिप और नॉट। लेट्स सी, आई विल फाइंड आउट मोर अबाउट दिस। अब तक जितना मेरी इन्फॉर्मेशन है, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ एनी स्कॉलरशिप। आई विल फाइंड आउट मोर अबाउट दिस। ठीक है, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन उमेर? उमेर, could you just kindly tell if it answers your question, या फिर should I elaborate more on this? Yes, sir. So thank you, Umair. Okay, one more person asked, is there any advantage of being a children of government employee? I don't suppose so, ma. ऐसा तो कुछ नहीं है वहाँ पे एडवांटेज। ओके, तो ठीक है, विल कंटिन्यू द क्वेश्चंस लास्ट में। अब तक के लिए आई जस्ट कंटिन्यू विद माय प्रेजेंटेशन अगेन। ठीक है, या सो आफ्टर क्लियरिंग, इज देयर एनी फी आफ्टर मैचिंग? nahi ma, after you match there is no fee, ulta you get a stipend. That stipend is also quite handsome. Basically you will be given approximately 55 से लेके $65,000 per year. तो $65,000 में से आप रफली 30% टैक्स में निकाल लो, तो सर that आपकी will be, वॉइस फिर से ब्रेक हो रही है। फिर से ब्रेक हो जाएगा। जी अच्छा, तो whenever I'm sharing my screen ब्रेक हो रहा है। Okay, I'll stop sharing it. Let's see. जी, हेलो, अब कैसा है? जी अब क्लियर है। या ओके, ठीक है, देखेंगे। हम्म, या तो हाँ, तो मैच होने के बाद यू विल गिवन क्वाइट अ हैंडसम स्टाइपेंड, $65,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। उसका 30% निकाल दो, दैट विल बी रफली $40,000 आपको इन हैंड आते। तो $40,000 बाई 12 विल बी अप्रोक्सीमेटली $3,500 पर मंथ। उसमें से आपके एक्सपेंडिचर्स वगैरह भी अगर निकाल लिए आप, तो यू विल स्टिल सेव अप टू 40-50,000 पर 40-50,000 रुपीज पर मंथ, अगर आप अपने सेविंग्स करने के उसमें है तो दैट इज अ गुड इनफ स्टाइपेंड। और आप किस मतलब इफ यू कंप्लीट योर आईएम रेसिडेंसी, इंटरनल मेडिसिन की रेसिडेंसी, और आप वहाँ पे फेलोशिप नहीं भी करें, फेलोशिप मतलब कार्डियो, न्यूरो, गैस्ट्रो, अगर ये सब चीज नहीं भी करें आप, इफ यू स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली आफ्टर योर इंटरनल मेडिसिन रेसिडेंसी, यू विल अर्न अपवर्ड्स ऑफ $300,000 पर ईयर। तो $300,000 पर ईयर से आप टैक्सेस भी निकाल लिए अगर, तो दैट विल बी $200,000 इजीली। $200,000 पर मंथ विल बी $80,000 शायद, नहीं बढ़ के ही होता, जो भी होता है, रफली इट कम्स अराउंड 15 to 20 lakhs पर मंथ कमाते हैं आप इन इंडियन रुपीस।
ठीक है उमेर, डज दैट आंसर योर And what about expenses, sir? या एक्सपेंसेस तो रहता है आपको बेसिक तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड परचेसिंग वैल्यू। परचेसिंग वैल्यू का एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि आपको इंडिया में कच्चा मैंगो बाइट 50 सेंट्स या फिर 1 रुपए में 2 मिल जाते। हाँ, अब वही सेम कच्चा मैंगो बाइट यूएस में जाके खरीदे तो आपको $1 में 1 आता। बट $1 इज 80 रुपीज एंड यहाँ पे अपने को कितना 0.5 रुपीज में मिल रहा था। So that is something called purchasing power. Even though you're earning more in terms of rupees, but more or less आपको वहीं पे मतलब you'll still be above average, above एक luxurious household रहता आपका। you'll still earn मतलब अगर आप 15 लाख वहां कमा रहे इन रुपीज, that does not mean कि आप इंडिया के 15 लाख से इक्वेट कर सकते। that will still amount to about 5 to 6 lakhs of Indian rupees अगर आप यहाँ रह के कमाते तो। आप वही सिनारियो इंडिया से कंपेयर कर लो। पोस्ट पीजी कितना पे कर रहे हैं लोग आपको? एनी आइडिया? हुजैफा खान, हुजैफ खान? हेलो 30,000 if I Arshia check. texted 30,000 rupees. Basically, more or less same है. Immediately after MBBS, they are paying you 30 to 35,000 rupees. Immediately after PG, maximum they'll pay you 1 to 1.5 lakhs. अगर आपको एक्सपीरियंस बढ़ रहा तो you'll get 1.5 to 2 lakhs. But एक with only PG आप maximum you can expect is 2 to 3 lakhs. उससे ज्यादा आप कमाना मुश्किल है in the corporate setting. अगर आप अपने खुद की क्लिनिक डाल ले रहे हैं that is well and good. बट उसके वास्ते भी कैपिटल होना, कैपिटल होने की ऐसे सैलरी अच्छी रहना, सैलरी वो लोग अच्छी दे रहे हैं। या ओके, तो दैट वाज अबाउट द टोटल एक्सपेंसेस का पार्ट। एक्सपेंसेस के हद तक कुछ और क्वेश्चन है किसी को? Sir, there is one more question in chat box. If we do not match, we have to give exam once again. नहीं आई ऑलरेडी बोल दिया ना, मैं एग्जाम्स कैसे देना नहीं है। एग्जाम्स आपके स्कोर्स 7 इयर्स तक वैलिड रहते हैं। इफ यू राइट योर स्टेप 1 राइट नाउ, आज ही अगर आप स्टेप 1 लिखे तो 2031 तक आपका स्टेप 1 स्कोर वैलिड रहता है। तो टिल दैट टाइम यू कैन कीप ऑन अप्लाइंग अगेन एंड अगेन। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 ऑल थ्री स्कोर वैलिड फॉर 7 इयर्स। या तो एक्सपेंसेस की बात कर रहे थे अपन, दैट इज डन। एंड देन द नेक्स्ट इज वेयर इज द स्टार्टिंग लाइन, व्हेन शुड आई स्टार्ट? तो इसके लिए वन देयर वाज अ वेरी वाइज मैन हु सेड दिस लाइन, हम जहां खड़े जाए लाइन वहीं से शुरू होती है। ये कौन बोले? तो कुछ आइडिया है किसी को? कोई तो बोलना है। Amitabh Bachchan. अच्छा, लेट मी शो यू, दिस लाइन इज फ्रॉम अ वेरी फेमस अमिताभ बच्चन मूवी कालिया मिल के, कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। और दैट इज वेरी ट्रू स्पेशली इन केस ऑफ यूएसएमएल। जब जागे जब सवेरा, मतलब अगर आप थर्ड ईयर के एंड में डिसाइड करें कि आपको स्टेप 1 देना है, यस दैट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आप 10 इयर्स आफ्टर ग्रेजुएटिंग डिसाइड करें कि कैन आई डू एमएलए नाउ, बोलते यस ऑब्वियसली यस, दैट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। बट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर इज द अर्लियर यू स्टार्ट द मोर यू आर एट एन एडवांटेज। ठीक है, क्योंकि वहां पे भी यूएस में भी दे डू नॉट प्रेफर पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ गैप इन देयर रिज्यूमे। मतलब अगर मैं 2024 में ग्रेजुएट हो गया और 2026 तक मैं कुछ नहीं करा, और फिर जब अगर मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ तो दिल डेफिनेटली आस्क मी कि 2 साल आप कहाँ खराब करे, व्हाट वाज योर रीजन? ये क्वेश्चन रहता है आपको। तो इवन इफ यू आर वर्किंग फॉर 2 इयर्स यू आर नो लॉन्गर अ फ्रेश ग्रेजुएट। तो ये चीज रहती है कि अ फ्रेश ग्रेजुएट हैज मोर टेंडेंसी टू बी एग्रीएबल या फिर मोर टेंडेंसी टू वर्क हार्डर। एक 24 इयर्स के आदमी में और एक 30 इयर्स के आदमी में फर्क यही रहता कि 24 ईयर ओल्ड विल बी मोर एजाइल and more quick to learn and absorb things compared to a 30-year-old. So if you have a gap in your CV, that is a small red point in your CV. It is not kind of discussion. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर मैं ग्रेजुएट हो गए बहुत साल हो गया I cannot apply. No, that is definitely not true. I have seen many people पूरे ग्रेजुएशन के 10 इयर्स तक एमबीबीएस डिग्री पे प्रैक्टिस करे, फिर उसके बाद जस्ट गिव देयर स्टेप एग्जाम्स एंड नाउ दे हैव मैच्ड एंड दे आर डूइंग अ वेरी सक्सेसफुल प्रैक्टिस इन यूएस। ठीक है, तो देयर इज नो फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, सेकंड इयर्स एंड थर्ड इयर्स वाले, ये थर्ड ईयर वाले अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं वेल एंड गुड। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ये देख कर डिस्करेज मत हो कि अरे उन्होंने तो सेकंड ईयर में स्टार्ट कर दिया मैं नहीं करा बोल के।
any point you decide you have to write MLE, that is your starting point. ठीक है? Okay. हाँ, तो next, अच्छा, am I already too late? मैं already cover कर लिया शायद कि there is never such thing as too late in the USMLE journey. ठीक है? I know a doctor, मैं नाम तो शेयर नहीं कर सकता उनका, but they decided कि they want to do USMLE after the internship completed. They're from Osmania only. तो इंटर्नशिप के बाद 1 साल बैठ के उन्होंने स्टेप 1 का पढ़े, फिर 1 साल बैठ के स्टेप 2 का पढ़े, एंड देन नेक्स्ट ईयर उन्होंने एप्लीकेशन अप्लाई करी, ईयरस एप्लीकेशन, एंड ही सक्सेसफुली मैच्ड. तो जस्ट बिकॉज उन्होंने इंटर्नशिप के एंड तक नहीं सोचे थे कि उनके एमएलई करना, तो वाज ही लेट टिल देन? नहीं, he had his reasons whatever they might be. उन्होंने लेट शुरू करे and he has matched successfully. US is basically a very welcoming country. आप अगर वहां जाके आप ये प्रूव कर सके कि आई एम रेडी टू वर्क हार्ड on this given salary and I'm ready to learn, people will accept you. Okay, that is your okay. And then fourth part is USMLE for me. Okay, तो यहाँ पर I'll close my screen. अब यहाँ पे कुछ नहीं है PPT में. We'll just have a discussion over here. Sir, there are 2 questions in the chat box. Shall I read it out for you? 2 seconds. If you do USMLE after PG, then PG degree is recognized in the USA. नहीं माँ, it is not. आपको रेसिडेंसी फिर से करना पड़ता. आप अगर यहाँ पीजी कर लिए एंड देन इफ यू अप्लाई, आपको पीजी फिर से करना पड़ता, बट यूल हैव अ स्लाइट एडवांटेज. सपोज मैं रेडियोलॉजी में 3 साल ऑलरेडी पीजी कर लिया एंड देन आई अप्लाइड इन रेडियोलॉजी, तो वहाँ के पीपल विल हैव दिस कॉन्फिडेंस ना कि एटलीस्ट ही हैज ऑलरेडी इन्वेस्टेड 3 years in रेडियोलॉजी बोल के, तो यूल हैव अ स्लाइट एडवांटेज, बट इट इज नॉट दैट ग्रेट ऑफ एडवांटेज कि आप पहले यहाँ पीजी करो फिर वहां 3 साल पीजी करो. तो यू डू नॉट, द पीजी डिग्री इज नॉट वैलिड इन यूएसए. फहीम, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? बस यस लिख दो ना चैट बॉक्स में. चलो, नाइस फहीम. Okay, one more person is asking me, can you please give a comparison between giving step 1 in second year versus giving step 2 in later stages, final year, internship, etc., which is better? अच्छा, ठीक है. This was by Maisha Fatima. Maisha Fatima, I have read your question. I'm definitely इसको आंसर करूंगा. But before that, let's talk how to decide if USMLE is for you or not. उसके बाद Q&A सेशन रहता, वहां पे we can discuss in depth about this. ठीक है. तो बेसिकली whenever you want to decide कि MLE आपके लिए है या नहीं है, these are the 5 points I tell everyone कि ये 5 points आप कंसिडर करो. इसके बाद आप डिसाइड करो कि स्टेप 1 देना है या नहीं देना है. क्योंकि there is a very valid thing called FOMO, fear of missing out. I have seen many of my batchmates just because everyone else is doing step 1, step 2, वो लोग भी step 1, step 2 देने के लिए बैठ जाते. होता क्या, इंटरेस्ट तो है नहीं, पैसे खाली जा रहे, and they keep on postponing the exam date. I had a batchmate, उन्होंने थर्ड ईयर से बोल रहे हैं कि मैं स्टेप 1 देती हूँ. थर्ड ईयर में स्टेप 1 नहीं हुआ, फाइनल ईयर में स्टेप 1 नहीं हुआ, इंटर्नशिप में भी स्टेप 1 नहीं हुआ, फिर इंटर्नशिप के एंड में कहीं जाके इनका कुछ और, मतलब she decided to do something else. ठीक है. Sir, how much will be the complete cost? I think it nearly 18 lakh rupees or कितना? to 18 lakh rupees with all residencies 18 या livings. 80? 18, sir. या नहीं माँ, वो एक रेंज है. सी डिपेंड्स, अब आपका और मेरा लाइफस्टाइल सेम रहना जरूरी नहीं है ना. देयर आर सम पीपल जो अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा ब्लेस्ड रहते, तो दे कैन अफोर्ड टू हैव अ लाविश लाइफस्टाइल. मतलब वहां पे जाने के बाद भी सम पीपल जो है दे हैव दे रेंट देयर ओन अकोमोडेशंस, मतलब अलग रहना पसंद करते हैं. दे स्पेंड इन डिफरेंट थिंग्स. तो वो सब अगर आप गिनते चले गए तो दैट विल गिफ्ट यू अप टू 18 lakhs. मैं आपको बोल रहा हूँ ना, आई हैव सीन एंड अपवर्ड्स ऑफ 25 lakhs आल्सो, क्योंकि यूएस में हाउसिंग बहुत कॉस्टली रहती. ठीक है. The expenses of rent are quite higher, no, sir. या एग्जैक्टली. तो And the अगर आप living अकेले रहना also. पसंद कर रहे हैं तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. बेसिकली लोग करते हैं क्या बोलते हैं, 3 to 4 पीपल दे यूजुअली कम टुगेदर एंड दे शेयर एन अकोमोडेशन. ठीक है. तो आपको वहीं पे कॉस्ट 1/4 कम हो जाता है ना. Yeah. या तो आई एम नॉट टेलिंग कि 18 lakhs बहुत बड़ा नंबर है, इट इज नॉट पॉसिबल 18 lakhs होते हैं. 18 lakhs हो सकते, बट if you're very frugal with what you're spending, if you're smart with what you're spending, आप जो है easily up to एक 13 से 16 lakhs के बीच में आप पूरा क्लोज कर दे सकते हैं. जी.
सर if we are giving NEET PG then एक ईयर में ही मालूम चल जाता रिजल्ट की सीट मिली या नहीं मिली, यहाँ 3 साल रुक के फिर और एंड ऑल दैट। और जी हुजैफ, बहुत सही बात है आपकी। मेरे को आपके क्वेश्चन बहुत पसंद आ रहे हैं, थोड़ा होल्ड करिए ना अपन, मैं जस्ट ये सेक्शन कंप्लीट करने के बाद Q&A पाएंगे अपन। अल्लाह इतना हो जा तो हो गया ना जी सर। जी हुजैफ, मैं आपकी बात समझ सक रहा हूँ, जस्ट एक 2 मिनट दे दो मेरे को, आई जस्ट टॉक ऑन दिस एंड आई विल गेट बैक टू यू, ठीक है? ओके ओके या तो ठीक है, आई वाज टेलिंग कि यूएसए में आपके लिए है या नहीं डिसाइड करने के लिए दे आर 5 मेन थिंग्स, ठीक है? तो 5 मेन थिंग्स क्या क्या है? नंबर 1, योर इंटरेस्ट इन इट। आपको अगर इंटरेस्ट नहीं है तो छोड़ दो। ये फोमो में मत जाओ कि सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ, क्या करना है कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कैन नॉट इमेजिन द प्रेशर जो आपके सर, अगर आप 1 लाख रुपए पे एग्जाम के वास्ते भर दिए ना, आपके दिमाग में इतना प्रेशर आ जाता, यू कैन नॉट डिफरेंट। देयर आर सम टाइम्स आई फील लाइक आई शुड क्विट एवरीथिंग बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम अ वेरी फाइनेंशियल साउंड बैकग्राउंड। माय फादर वाज एन इंजीनियर, अल्हम्दुलिल्लाह ही अर्नड व्हाटएवर ही गॉट, बहुत अच्छा कमाए उन्होंने, बट जो भी है, मैं ऐसे घराने से नहीं हूँ कि आई कैन जस्ट स्पेंड 1 लाख एंड बी लाइट अबाउट इट। 1 लाख रुपीज पे करने के बाद मेरे जहन में वो प्रेशर पड़ जाता कि आई हैव पेड 1 लाख, मेरे को ये करना ही है। तो अगर इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज छोड़ दो, फोमो के चक्कर में आके मत लिखो, ठीक है? नंबर 1। फिर नंबर 2, योर विलिंगनेस टू लीव योर होम कंट्री। अब हम में से बहुत लोग ऐसे होंगे हु माइट बी द सोल ब्रेड अर्नर्स, मतलब अब एक लौता बेटा है, फिर एक लौती बेटी है। अब ऐसे कंडीशंस में इट इज वेरी प्रैक्टिकली डिफिकल्ट टू लीव योर पेरेंट्स एंड गो अब्रॉड ना। हाँ, लोग बोलते हैं कि यू कैन कॉल योर पेरेंट्स देयर आल्सो बोल के, बट दैट इज नॉट वेरी प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि वीजा लगता है नहीं लगता, लगने के बाद फिर वहां पे आपको अकोमोडेशन मिलती नहीं मिलती, वो बहुत ज्यादा लंबी कहानी है। तो अगर आप इकलौते बेटे बेटे हैं एंड पेरेंट्स कैन नॉट लिव विदाउट यू, तो दैट इज अनदर थिंग यू हैव टू कंसिडर। तो नंबर 1 वाज आपका इंटरेस्ट, नंबर 2 वाज आपकी विलिंगनेस टू लीव योर होम कंट्री, नंबर 3 विल बी योर फाइनेंशियल एस्पेक्ट। जी, जैसा कि मैं बोला 13 to 16 लाख हो सकते हैं, बट वो एक साथ खर्चा नहीं होता है। आपको बस 1 साल में 1 लाख देना है, फिर नेक्स्ट ईयर 1 लाख देना है, फिर उसके बाद आपको जो है इलेक्टिव्स के लिए जाना है, तो दिस अमाउंट इज डिस्पर्स्ड छोटा छोटे उसमें। बट स्टिल आई डोंट थिंक एवरीबडी कैन अफोर्ड 13 to 16 लाख ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आपको ये कंसिडर करना पड़ता। बट अगेन जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ, इट इज नॉट मनी यूज्ड, इट इज मनी इन्वेस्टेड। आप आपके तालीम में पैसा डालिए, डेफिनेटली इट विल बी अ गुड आउटकम। अब हाउ मेनी ऑफ यू हैव आईफोन्स ओवर हियर? इजीली एक 60 to 70% पॉपुलेशन के पास आईफोन है अपने पास। तो अब आई डोंट सपोज कि अगर आप आईफोन के पीछे 1-1.5 लाख डाल सकते हैं, तो इसके पीछे इतना पैसा डालना इज डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है? ओके, बहरहाल तो थर्ड वाज ए फाइनेंशियल एस्पेक्ट, एंड फोर्थ पार्ट विल बी योर प्रेफरेंस फॉर स्पेशलिटी, ठीक है? मतलब क्या? अब समवन आस्क्ड मी इन द क्वेश्चन बॉक्स आल्सो कि सिर्फ इंटरनल मेडिसिन ही मिलती है क्या यूएस में? बोलते नहीं, डेफिनेटली दैट इज नॉट द केस। यू कैन गेट अ लॉट ऑफ स्पेशलिटीज। द इजीएस्ट टू गेट आर पैथोलॉजी, फैमिली मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, टू सम एक्सटेंट न्यूरोलॉजी, फैमिली मेडिसिन एंड इंटरनल मेडिसिन। ये 6 स्पेशलिटीज आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं फॉर एन नॉन यूएस आईएमजी, ठीक है? बट आपको अलग स्पेशलिटीज जैसे कि जनरल सर्जरी, रेडियोलॉजी, टू सम एक्सटेंट एनेस्थीसियोलॉजी, ये आपको मिलना भी बहुत ज्यादा पॉसिबल है, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। एक सेकंड, कुछ आया चैट बॉक्स में। ओके, हाँ, तो आई विल गेट बैक टू द क्वेश्चंस। बहरहाल where was I? जी, स्पेशलिटीज के बारे में बात कर रहे थे अपन। आई एम इज a relatively easier specialty to get compared to other specialties, but that is not the only case. हमारे साथ हमारे एक सीनियर है 17 बैच के, he is trying for surgery this year. इंशाल्लाह if he gets selected, it will be a very good example for all of us कि जनरल सर्जरी में भी मिलने का बहुत ज्यादा स्कोप है। The only negative point about this is कि वहां के लोगों को आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ता, ठीक है? क्योंकि इंटरनल मेडिसिन इजीली अवेलेबल है, आपको मिल जाती, बट जनरल सर्जरी, एनेस्थीसियोलॉजी, ये आपको कॉम्पिटिटिव स्पेशलिटीज में आता। तो टू compete for these competitive specialties you'll have to put an extra 1 or 2 years। ये एक्स्ट्रा 1 or 2 years किसमें डाल रहे हैं आप यूएस में ही रह के वहां पे रिसर्च ईयर करना पड़ता, या तो रिसर्च ईयर या फिर प्रीलिम पोजीशन।
अब रिसर्च ईयर क्या है, प्रीलिम पोजीशन क्या है, विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस इन आवर अपकमिंग webinars. ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट वेबिनार नहीं है. इंशाल्लाह आई विल बी कनेक्टेड विद IMSA एंड विल डू मेनी सच वेबिनार्स इन द नियर फ्यूचर. बहरहाल ठीक है. तो अब तक 3 पॉइंट बोला मैं आपको. नंबर 1 वाज योर इंटरेस्ट इन USMLE. नंबर 2 वाज आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स. नंबर 3 विलिंगनेस टू लीव योर होम कंट्री. नंबर 4 योर प्रेफरेंस फॉर स्पेशलिटी. ये 4 चीजें हैं. ये 4 चीजें अगर आप इसमें से इफ यू आर एबल टू सेटिस्फाई 3 और मोर, देन आई एम टेलिंग यू USMLE इज अ वेरी गुड ऑप्शन. आप लोग डेफिनेटली कंसिडर करिए. ठीक है. अगर आपको 2 या 2 से कम इसमें आपको पॉजिटिव आंसर्स नहीं आ रहे हैं, तो डोंट वेस्ट योर टाइम बिहाइंड इट. यू आर मेंट फॉर मेनी ग्रेट थिंग्स बट नॉट इन दिस डायरेक्शन. उतना ही. एंड USMLE ऐसा कोई सोने का खजाना नहीं है कि जाते कि आपको जो है पैसा छाप रहे हैं, डॉलर छाप रहे हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है. एवरी स्टोरी हैज इट्स ओन स्ट्रगल. ठीक है. ओके. तो इसके बारे में तो इतना ही है. तो चलो लेट्स मूव इनटू द Q&A सेशन. हुजैफ प्लीज आपको क्वेश्चन रिपीट करिए ना. जी सर, आई एम वेरी मच थैंकफुल दैट यू हैव गिवन मी अ चांस. सर सबसे पहले तो ये बात बोलना चाहूंगा, हुजैफ कौन से कॉलेज से आप? अयान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अरे माशाल्लाह. बैच बैच 2K21. 2K21. जी. अरे माशाल्लाह. चलिए चलिए, हाँ बोलिए क्वेश्चन. जी सर, मैं 3 साल से इसके स्टडी कर रहा था कि आई वांट टू गेट अब्रॉड, मतलब यूएस में एज अ MBBS में प्रैक्टिस करना है. तो सर मैं फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप के बारे में भी निकाला है, पूरी डिटेल्स ही वो. तो द लास्ट थिंग आई गेट इज कि यहाँ इंडिया में 1 मंथ में ही मालूम चल जाता PG दिए बाद कि वी आर सेलेक्टेड और नॉट. और फिर इसमें ही जब तक अब हमारे बैचमेट्स का PG भी हो जाएगा जब तक हम और बिल्कुल अल्लाह साथ है, मदद है हमारे साथ, इंशाल्लाह क्लियर भी कर लेंगे. मगर इफ खुदा ना खास्ता अगर ना हुआ तो the regret will be more sir by spending those quite precious important years and time. या डेफिनेटली हुजैफ. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे आप. आपके क्वेश्चन के 3 एस्पेक्ट्स थे. एक तो आप ये बोल रहे हैं कि रिजल्ट मतलब USMLE इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. बहुत ज्यादा टाइम तक इसके पीछे एफर्ट्स डालना है और फिर भी अनसर्टेनिटी है, मैच होते हैं या नहीं होते. सेकंड चीज आप ये बोले कि अगर मैच नहीं हुए तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ रिग्रेट, आई वेस्टेड माय प्राइम इयर्स. ठीक है. एंड अच्छा, तो ये मेन 2 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे अपन. तो हुजैफ लोग USMLE नीट PG के ऊपर प्रेफर करने के 2 मेन वजह रहते हैं. नंबर 1 विल बी द हैंडसम पे. आप यहाँ पे रह के उतना इजीली या फिर उतना जल्दी आपका करियर एडवांस नहीं कर सकते कंपेयर टू US. अब जैसे कि यहाँ पे इमीडिएटली आफ्टर PG यू आर गेटिंग पेड ओनली 1.5 lakhs मैक्सिमम है वो. आई हैव सीन कार्डियोथोरैसिक सर्जन्स जो कि PG के बाद SSB कर लिए, वो लोग दे आर वर्किंग एट अ सैलरी ऑफ 90,000 रुपीज पर मंथ. 90,000 गच्चक की बंडी वाला कमा लेता. तो बेसिकली यहाँ पे आपका जो करियर ग्रोथ है इट विल बी वेरी स्लो. आप सुकून से थोड़ा 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 करके कमाना. यू हैव टू मेक योर ओन फेस वैल्यू, मतलब आप सेटल होना in whatever field you are. Suppose if you're a neurosurgeon, you have to establish yourself as a neurosurgeon, then work in corporate hospitals, and then आप अपनी clinic जब खोलेंगे या फिर अपनी practice जब खोलेंगे, at that time you will start earning. Till then आप बहुत मीगर सैलरीज पे 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पे ही आपको बस कर देना पड़ता. हाँ 2 लाख कम नहीं, कम है बल्कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट आप आपके जिंदगी के 8 से 12 साल इतनी मेहनत करे बाद 2 लाख कम है. और आपको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह भी कंसिडरेशन में आता है जो कि US में मच बेटर है. तो ये चीज थोड़े लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है, थोड़े को नहीं अट्रैक्ट करती है. बट लाइक आई सेड, आज के सेशन का नाम ही USMLE एंड यू है. तो आपको अगर पैसा अट्रैक्ट कर रहा, आपको अगर वर्क लाइफ बैलेंस अट्रैक्ट कर रही, तो मूविंग टू US इज अ गुड ऑप्शन. नहीं इफ यू फील कि मेरे को मेरे पेरेंट्स के साथ वगैरह रहना है, आई एम कंफर्टेबल इन इंडिया, मेरे को इतनी अनसर्टेनिटी नहीं होना, तो दैट डेफिनेटली मीन्स कि नीट और नेक्स्ट या फिर IISER इज बेटर ऑप्शन है ना. Yes sir. अस्सलाम वालेकुम. जी हाँ, वालेकुम सलाम. हु इज हाफिज दिस? भाई, आप जैसा बोले कि अदर देन इंटरनल मेडिसिन और वो जो जो इजीली मिल जाता, उसके अलावा जो जो भी ब्रांचेस है उसको लेने को से एक्स्ट्रा इयर्स मतलब मेहनत करना पड़ता है, या फिर यही टाइम में अगर हम लोग ज्यादा हार्ड वर्क करें तो मिल सकता है, उनको पूछ रहा हूँ मैं.
नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। वो आप जो बोलना चाह रहे हैं, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि वो एक एक्स्ट्रा ईयर डालना जरूरी है, या फिर वो 1 साल की मेहनत में पहले कर ले सकता हूँ क्या, है ना? हाँ मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर वो जो इजी, वो जो थोड़ा हार्ड है, जैसे सर्जरी बोले आप, या फिर अभी दूसरा रेडियोलॉजी वगैरह, अगर वो लेना चाह रहे, तो एक जो एक एक 1.5 साल 2 साल के अंदर जो यूएसएमएल स्टेप 1 स्टेप 2 के अंदर जो ये टाइमिंग है, ये टाइमिंग के अंदर अपन मेहनत कर लेके इसी टाइम में अगर मिल जा सकता है, या फिर अलग से जाने के बाद फिर थोड़ा ज्यादा मेहनत करने के बाद स्टेप 2 देने के बाद फिर मिलता है, ऐसा बोल रहा हूँ। जी जी, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। आप जो बोलना चाह रहे हैं वो मोर और लेस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जब सेकेंड और थर्ड ईयर ऑफ मेडिकल कॉलेज में रहते हैं, आप कुछ भी करो, वहाँ के जो प्रोग्राम डायरेक्टर्स या फिर जो आपका इंडिविजुअल वाले लोग रहते हैं, दे विल नॉट टेक इट वेरी सीरियसली। मतलब आप इंडिया में बैठ के अगर कुछ करे तो दे डोंट नो ना कि इसमें कितनी वैलिडिटी थी। अगर आप ये बोले कि मैं यहीं इंडिया में रह के सेकंड थर्ड ईयर में 2-3 साल का रिसर्च वर्क करके आई पब्लिश मेनी पेपर्स, आई पब्लिश मेनी आर्टिकल्स, आई पब्लिश मेनी केस रिपोर्ट्स एंड देन आई अप्लाई, तो मसला ये हो जाता है कि वहां के लोग दे डोंट टेक इट वेरी सीरियसली। बिकॉज एक वैलिड क्वेश्चन है भी है, एक अनजान कंट्री में बैठ के अनजान शख्स आके मेरे को ये बोल रहा कि मैं 100 पब्लिकेशन कर लिया, दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू बिलीव। तो ये जो एक्स्ट्रा 1 ईयर डालना है वो आपको यूएस में ही डालना है। मतलब आफ्टर योर स्टेप 1 स्टेप 2 इज डन, यू हैव टू मूव टुवर्ड द यूएस। वहां पे आप यू हैव टू अप्लाई फॉर रिसर्च पोजीशंस, बट ये रिसर्च पोजीशंस मोर थोड़े ठीक पेड है। भी रहते, थोड़े अनपेड भी रहते। इफ यू आर लकी इनफ टू गेट अ हम्म। पेड रिसर्च पोजीशन, आप वहीं पे कमाते हुए 1 साल रिसर्च कर सकते हैं, एंड देन नेक्स्ट ईयर आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर स्टेप 1 स्टेप 2 निकालने के बाद वहां चले जाना, फिर 1 साल तक अपन वो रिसर्च वगैरह करने के बाद फिर अपन मैच के लिए अप्लाई करना, ऐसा बोलना चाह जी रहे। जी, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। एंड ये जो जजाकल्ला रिसर्च खैर। बोल रहा नाम है, ये रिसर्च बहुत मिसगाइडिंग है। आपको वहां पे पॉइंट्स रिसर्च करने के मिल रहे हैं, बट उतना नहीं। आप जो 1 साल वहां पे रहते हैं ना, वो डॉक्टर्स के बीच में, एट दैट टाइम आपको उनसे कनेक्शंस बनाना है। बार बार उनके सामने जाना हो कि अरे सर मैं ये करा, देखिए आई हैव इंटरेस्ट इन दिस थिंग, सर आप भी इस पे काम कर रहे हैं, मैं भी इस पे काम कर रहा हूँ, चलिए लेट्स वर्क ऑन इट टुगेदर। तो इसको जो नेटवर्किंग बोलते हैं ना, दिस नेटवर्किंग गिव्स यू द हायर चांसेस ऑफ मैचिंग। आप जो रिसर्च कर रहे हैं एग्जैक्टली वो आपको मैच करने में हेल्प नहीं करता। आप वहां बैठ के जो लोगों से कनेक्शंस बनाते हैं, दैट हेल्प्स यू इन मैचिंग। अच्छा ठीक है। अच्छा, जजाकल्ला खैर। जी फजल। हाँ जजाक। ओके, थोड़ी देर के लिए आई लुक ऑन इन द चैट बॉक्स ना। सर अगर नीट यूजी से पहले ड्रॉप लिए तो उसका इफेक्ट अपने सीवी पे होता है? नहीं, कुछ नहीं होता वहाँ। आपका नीट, सॉरी, आपके एमबीबीएस स्टार्ट होने से पहले की जिंदगी से उनका कोई कंसर्न नहीं है। और ये जो मेंटालिटी है ना कि ये ड्रॉप ईयर इज अ बैड थिंग, ये सिर्फ इंडिया में है। अगर आप यूएस में जाके वहाँ के रेसिडेंट्स और वहाँ के फेलोज को देखे ना, तो वो लोग सब टकले सर के 35-40 ईयर्स के रहते हैं। ये अपने पास है कि सब जल्दी करना है, जल्दी करना है, अरे रेसिडेंसी, अरे सीट नहीं आई, कैसा फिर और एक साल वेस्ट होता है। वहां पे वैसा नहीं करते वो लोग, दे टेक इट वेरी इजीली। वो लोग आराम से एंजॉय कर लेते हुए 1-2-3 साल एक्स्ट्रा डाल के वो लोग मैच होते। इसलिए आप देखिए जब भी वहां पे रेसिडेंट्स रहते देर ऑफ अ लॉट मोर एज देन कम्पेयर टू यू। तो निदा, आपका क्वेश्चन आंसर हो गया इससे? Okay. Then next, Juveria is asking, is there a lot of paperwork required to write USMLE? Yes, definitely. Paperwork नहीं है, मतलब everything is online only these days, but because you're going to a foreign country, आपको बहुत ज्यादा formalities करना पड़ता। आप स्टेप वन के रजिस्टर करने के लिए ही you will have to like go through 2-3 levels of security checks. Okay, sir, don't take questions. Please continue with your PPT. Sorry, Haji Ali Junior. थोड़ा देर से देखा मैं। सर विद यूएसए मिली आर चांसेस टू गेट इनटू सर्जरी, इमरजेंसी मेडिसिन एंड पीट्स? डेफिनेटली पीट्स तो आपको मिल जाता है इजीली। इवन इमरजेंसी मेडिसिन मिल जाती है आपको। इमरजेंसी मेडिसिन के लास्ट टू लास्ट मैच में अप्रोक्सीमेटली 32% सीट्स खाली गए थे। मतलब 32% सीट्स आर एम्प्टी ओवर देयर। तो दिस इज अ गुड चांस आईएमजीज कैन एक्चुअली गो एंड अप्लाई इनटू इमरजेंसी मेडिसिन। मेरे को पर्सनली उतना पसंद नहीं, बल्कि आई नेवर एक्सप्लोर्ड इनटू दैट एरिया। सर्जरी के लिए डेफिनेटली माँ, सर्जरी के लिए डेफिनेटली देयर इज अ वेरी एडवांसिंग स्कोप। मतलब रीसेंट टाइम्स में अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम पाकिस्तान हैव मैच्ड इनटू जनरल सर्जरी। इंडियंस वैसे बहुत कम है अभी, बिकॉज इंडियन मेंटालिटी यही है कि आईएम मिल रहा तो आईएम ही ले लो। सर्जरी में आप जाके क्यों टाइम वेस्ट करते हैं? मतलब व्हाई डू यू वांट टू ट्राई फॉर समथिंग दैट इज हार्ड टू गेट? तो इसलिए अपने पास से कोई ट्राई नहीं कर रहे हैं, तो किसी को मैच ही नहीं हो रहे। तो अगर आपका इंटरेस्ट सर्जरी में है तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई इनटू इट। हाँ, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लगती, बट अगर इजी रहता तो हर कोई कर लेता ना। बिकॉज इट इज हार्ड, इट इज वर्थ डूइंग।
Sir, when you said interest, what do you mean? Like interest in USA as a country? हो सकता, yeah, definitely. अगर आपको यूएस कंट्री ही बिल्कुल पसंद नहीं आई तो आप फिर यूएसएमएलई करके जाते कहाँ पे? देयर इज नो पॉइंट ना. हाँ, बट ये भी एक चीज है, सॉरी सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन, आफ्टर यू राइट योर स्टेप 1 एंड स्टेप 2 आप जो है ईसीएफएमजी सर्टिफाइड रहते. व्हाट इज ईसीएफएमजी? ईसीएफएमजी मतलब एजुकेशनल काउंसिल फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स. मतलब यूएस की जो मेडिकल बॉडी है, दे आर एक्नॉलेजिंग यू एज अ कॉम्पिटेंट फिजिशियन. तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आफ्टर यू गेट डन विद स्टेप 1 स्टेप 2 और आप ईसीएफएमजी सर्टिफाइड हो गए, आप गल्फ कंट्रीज में जाके फॉर द सेम एक्सपीरियंस, सेम पोजीशन, अप्रोक्सीमेटली 1.5 टू 2 टाइम्स ज्यादा सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते. आजकल का ट्रेंड यही है, स्पेशली इन द गल्फ कंट्रीज. अगर आपके पास एक वेस्टर्न डिग्री रह गई, वेस्टर्न डिग्री इन द सेंस यूएसएमएलई या फिर प्लैब या फिर ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल, ये चीजों का कुछ डिग्री है तो गल्फ कंट्रीज जैसे कि सऊदी, कतर, ओमान, यहाँ पे बहुत अच्छी वैल्यू है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, कैन यू प्लीज गिव टिप्स ऑन हाउ टू बिल्ड नेटवर्किंग एंड टेक द मोस्ट एडवांटेज? व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट? व्हाट इज द राइट टाइम टू डू electives आफ्टर स्टेप 1 और आफ्टर स्टेप 2? इट डिपेंड्स. आपका नाम है मारिया हाशमी. मारिया हाशमी, इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. एक आइडियल सिनेरियो में यू डू योर स्टेप 1, यू डू योर स्टेप 2 एंड देन यू गो ऑन टू डू रोटेशंस. बट ऐसे बहुत से लोग हैं, मेरे सीनियर 17 बैच में बहुत से लोग हैं जो कि स्टेप 1 बगैर दिए electives करके आ गए और अब स्टेप 1 स्टेप 2 दे रहे हैं. वो बेसिकली आपके टाइमलाइन में जैसा फिट हो रहा है वैसा कर सकते हैं आप. अगर आपको दिख रहा कि यार मेरे को पढ़ना दिल नहीं पड़ रहा, मैं electives जाके आ जाती हूँ, जाके आओ, मसला नहीं है. अगर आपको ऐसा दिख रहा कि ना मैं एग्जाम्स क्लियर करे बाद ही जाती हूँ, तो दैट इज ऑल्सो गुड. देयर इज नो गुड टाइम और बैड टाइम टू गो फॉर electives. आपको जब जब भी अवेलेबल है. अब मेरे कंडीशन में मैं थर्ड ईयर में था, मैं स्टेप 1 लिखा. फाइनल ईयर में आई डिड माय नेटवर्किंग एंड सीवी बिल्डिंग. इंटर्नशिप में स्टार्टिंग का थोड़ा टाइम जाया हो गया, उसके बाद मैं स्टेप 2 दे दिया एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर electives. ओके, कैन यू प्लीज मेक टिप्स नेटवर्किंग एंड टेक द मोस्ट एडवांटेज? नेटवर्किंग और इसके बारे में अपन अपकमिंग वेबिनार्स में बात करेंगे. इज दैट फाइन विथ यू मारिया? या, थैंक यू. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, इज अयान स्पॉन्सर्ड बाय ईसीएफएमजी? ये क्वेश्चन फहीम पूछ रहे हैं. तो बेसिकली आप स्टेप 1 स्टेप 2 देने के लिए ईसीएफएमजी में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना रहता. तो आप रजिस्टर तभी करा सकते हैं जब आपका मेडिकल स्कूल इज आइडेंटिफाइड बाय ईसीएफएमजी. ठीक है. तो as much as I know, Ayan is still not identified by ECFMG as a viable body, but I've heard कि ये साल इंशाल्लाह वो लोग सर्टिफाई करने वाले हैं. तो that will be Yeah, sir, better it known is by in your process college only. seniors. It जी, is in process only. या तो आप आपके सीनियर से या फिर आपके जो फैकल्टी है, आप उन लोगों को जाके सताओ, भैया हम जल्दी करो मिलके, वो लोग कर देते हैं. Okay, how is USMLE different from other exams? How is USMLE different from other exams? फारह पूछ रहे हैं. Basically, USMLE is a very unique exam in terms कि it takes a lot of a lot more of your time compared to your नीट पेजी. जैसे कि हुजैफ बोले थे, नीट लिखने के लिए 6 महीने अगर आप दरवाजा बंद करके पढ़ लिए, आपको सीट आ जाती कहीं ना कहीं, तो यू इजीली गेट अ सीट. अगर आप 6 मंथ्स तक वेरी डेडिकेटेडली पढ़ लिए तो. बट एमएलई में वैसा नहीं है. आप कितना भी दरवाजा बंद रख लो, आपको 2 से 3 साल लगने वाले हैं. मतलब इफ यू स्टार्ट इन सेकंड थर्ड ईयर, अगर आप इंटर्नशिप के बाद स्टार्ट करें तो आप 1 साल में भी कर ले सकते हो. और एक इसमें डिफरेंस ये है कि आपको स्पेशलिटीज चूज करने में थोड़ा लिमिटेड ऑप्शन अवेलेबल है. आप नीट पीजी में न्यूरो सर्जरी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट आप यूएस में जाके न्यूरो सर्जरी मिलना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है. वी हियर दैट आफ्टर रेडियोलॉजी पेरिफेरल्स में 4 लाख कमा से मिल गए. वो मेरे को भी सेम ट्रैप दिए थे. इंटर हो गया, उस्मानिया में सीट आ गई तो मजे ही मजे बोल के बोले थे, वैसा कुछ भी नहीं है, फेरी टेल्स है वो सब. 4 लाख कहीं भी नहीं मिल रहे हैं आफ्टर ईयर पीजी. हाँ, अगर पेरिफेरल्स इन द सेंस, अगर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हैदराबाद छोड़ के अगर मैं कहीं और गई, मैं वहां पे जाके अपनी प्रैक्टिस डाल ली, तो यस दैट इज अ पॉसिबिलिटी. बट अब उतना कैपिटल अगर आपके पास है कि आप जो है हैदराबाद छोड़ के जंगांव, भंगेर,
ऐसे जगहों में जाके वहां पे अपना हॉस्पिटल डाल के अगर आप कमा रहे हैं तो यू कैन अर्न अप टू 3-4 लाख इजीली। बट आप हैदराबाद में रहते वही हुए एक्सपेक्ट नहीं कर तो सकते हो, बिकॉज हैदराबाद में ऑलरेडी बहुत ज्यादा रेडियोलॉजिस्ट है। Okay, then sir, can we get gynecology through USMLE? And can you also please repeat the specialty we can do through USMLE? USMLE से you can get almost any specialty except for neurosurgery, plastic surgery, orthopedics, dermatology. ये जो एकदम हाई द मोस्ट दीज आर द मोस्ट पेइंग मोस्ट हाईएस्ट पेइंग स्पेशलिटीज जो कि मिलना मुश्किल है। उसको छोड़ के कैन ट्राई फॉर एनीथिंग। हाँ, मगर अगर आप कॉम्पिटिटिव स्पेशलिटीज पर जा रहे हैं तो आपको टाइम डालना पड़ता। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि टाइम डालने का मतलब क्या है, व्हाट शुड एग्जैक्टली डू। इतनी जल्दी समझ में आने वाली चीज है भी नहीं वो। विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस इन आवर अपकमिंग वेबिनार्स। ठीक है, अभी से आर्मी को समझ में नहीं आ रहा होगा, दिल छोटा मत करिए। आई एम हियर, इंशाल्लाह विल डिस्कस ऑन दिस स्मूथली। सर एमबीबीएस की डिग्री का के मार्क्स का भी वेटेज रहता है क्या? बोल तो या डेफिनेटली ये विल हैव नॉट वेरी मच डिफरेंस बट देयर इज अ डिफरेंस, इट विल मेक अ डिफरेंस। क्योंकि आपको व्हेन यू अप्लाई फॉर ईरास एप्लीकेशन आपको आपके कॉलेज की ट्रांसक्रिप्ट सबमिट करना रहता। तो इन दैट एस्पेक्ट अगर आप में एक या दो फेल या फिर रिपीटेड ईयर्स रहे तो इट विल बी सीन एज अ रेड फ्लैग। ओके, इज इंटरनल मेडिसिन इजी टू गेट इनटू? यस, और आजकल के टाइम पे तो इट इज वेरी इजी टू गेट इनटू। मतलब वेरी इजी इसलिए बोल रहा हूँ मैं, नॉट बिकॉज बैठे बैठे हो जाता, मेहनत तो डेफिनेटली लगती, बट ये पाथवे थोड़ा क्लियर हो गया बिकॉज मेनी पीपल हैव ऑलरेडी डन इट। अभी उतनी कंफ्यूजन नहीं है कंपेयर टू प्रीवियस टाइम्स। जैसे आपके सीनियर्स और करते जाते हैं आपको और टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते जाते हैं। हम जब सेकंड थर्ड ईयर में थे नो वन वाज देयर टू गाइड अस कि क्या रहता मिली क्या नहीं रहता। वी जस्ट टोल्ड बिस्मिल्लाह, शुरू तो करेंगे बिल्कुल। So yes, going into internal medicine is considerably easy. I heard that step one subjects are MBBS first and second year subjects of India. So can we write step one at the end of second year? Yes, असफिया शाहीन, मैं खुद सेकेंड ईयर के बाद मेरा स्टेप वन लिखा था, बट सेकेंड ईयर की इमीडिएटली बाद नहीं, सेकेंड ईयर के बाद आई डिसाइडेड कि आई वांट टू राइट एमएलई। तो उसके बाद से नेक्स्ट 3.5 to 4 months एक डेडिकेटेड पीरियड था मेरा। मतलब आई डिड नॉट गो टू कॉलेज, मैं ना पोस्टिंग अटेंड करा ना मैं क्लासेस गया ना। 4 महीने तक मैं घर में था, आई हैड माई डोर क्लोज्ड। तो 4 months तक मैं पढ़ा एंड रोट माई स्टेप वन। ठीक है, बट देयर आर ऑल्सो अदर पीपल जो कि स्टेप वन लिखने के लिए 1 साल भी लेते। सम पीपल टेक 6 months 7 months। तो इट डिपेंड्स आपके बेसिक्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। एंड द बेस्ट टाइम टू राइट स्टेप वन विल बी एट द एंड ऑफ योर सेकंड ईयर ओनली। माँ, आप थर्ड ईयर स्टार्ट होते कि इफ यू राइट योर स्टेप वन ना इट विल बी इजी फॉर यू। क्योंकि स्टेप वन फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में आप वो टॉपिक्स कवर करे हुए हैं, तो इट बी फ्रेश इन योर माइंड। अगर आप फाइनल ईयर तक का वेट करें तो बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी ये सब भूल जाते हैं आप। तो जब आपको बहुत तकलीफ होती है तो बेस्ट टाइम टू राइट योर स्टेप वन इज इन योर थर्ड ईयर। मैं अपने खुद के जूनियर्स को उस्मानिया में यही बोलता हूँ कि इफ यू डू नॉट हैव एनी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन योर थर्ड ईयर इज राइट योर स्टेप वन। अगर आप एमएलई नहीं भी कर रहे हैं तो भी मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि स्टेप वन जरूर लिखो। क्योंकि वो स्टेप वन की जो प्रिपरेशन है ना, इट चेंजेस योर मेंटालिटी अ लॉट। आप जो है पेशेंट को एज अ डायग्नोस्टिशियन देखना स्टार्ट करते। यू अंडरस्टैंड कि अगर मेरे पास एक पेशेंट चल के आ रहा, तो जस्ट जस्ट व्हेन आई लुक कि एक 68-year-old वुमन इज वॉकिंग टुवर्ड्स मी, इवन बिफोर शी ओपन्स हर माउथ मेरे दिमाग में एक लिस्ट ऑफ डिफरेंसेस आ जाते। अच्छा, पोस्ट मेनोपॉजल वुमन है, लिम्प कर रही है, इट कैन बी ऑस्टियोपोरोसिस, एंड व्हेन शी सिट्स एंड शी टेल्स कि मेरे को पैर में दर्द है, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ऑलरेडी डायग्नोसिस बन गया कि दिस इज मोर और लेस ऑस्टियोपोरोटिक स्ट्रेस फ्रैक्चर ओनली। अब बस कंफर्मेशन के लिए टेस्ट कराना है। आप देखेंगे इन मेनी हॉस्पिटल्स मेनी डॉक्टर को कुछ भी आइडिया नहीं रहता क्या चल रहा, बस एक लंबी लिस्ट ऑफ देते। टेस्ट में कुछ गड़बड़ आई तो अच्छा अम्मा आपको ये है बोल के बोलते। वैसा नहीं बनना है ना अपने को। तो एवरी 73 मेंबर्स अटेंडिंग दिस, अगर आपके घर में कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं है, अगर आपके वालिदैन 1 लाख रुपए के एग्जाम के लिए भरना ओके बोल रहे हैं, तो मैं आप सबको डेफिनेटली एडवाइस करूंगा कि राइट योर स्टेप वन एज सुन एज पॉसिबल। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन योर एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ। बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ एग्जाम की हद तक नहीं बोल रहा हूँ। सर ओके, स्टेप वन के लिए कोचिंग अवेलेबल करना कैसे रहेगा? कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन? हाँ, तो एमएलई के लिए ऑफलाइन कोचिंग अभी तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन कोचिंग में से कुछ अवेलेबल नहीं है। अगर आपको कुछ ऐसे पर्सनल डाउट्स है, छोटे मोटे डाउट्स है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आई ट्राई टू हेल्प आउट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सबको पर्सनली कोच करता हूँ। आई ट्राई टू हेल्प आउट वॉट एवर आई कैन। आप इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं मेरे को। या व्हाट्सएप सर?
जी। अल्लाह गलती कर दिया क्या बोल के मैं, अब रात तक देखे तो 100 बचे जा ठहरेंगे थे। मसला नहीं है माँ, आपको डाउट्स है तो मेरे को पूछिए, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प। हाउ डू यू अप्लाई फॉर इलेक्टिव्स कहते हैं अर्शा फातिमा जहरा। इलेक्टिव्स के लिए वील हैव अनदर वेबिनार ना, जब बात करेंगे अपन, क्योंकि अब जो इलेक्टिव्स में इंटरेस्टेड नहीं है उन लोग का टाइम बहुत ज्यादा जाया हो जाता है, पर लंबी कहानी है वो, सुकून से बात करना पड़ता। अर्शा फातिमा, प्लीज टेक योर क्वेश्चन इन द अपकमिंग वेबिनार्स, ठीक है ना? या द एक नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हाफिज भाई। जी। हाँ, अगर ये स्टेप 1 अगर स्टेप 1 लिख लिए समझो, तो स्टेप 2 लिखना है। अगर उसमें किसी कारण अगर अपन क्वालिफाइड नहीं कर सके, तो फिर हम्म। दूसरी बार फिर लिखे समझो, तो उसमें कुछ अपने ऊपर ऐसा रिमार्क वगैरह आ जाता है क्या, ऐसा कुछ लिखो। हाँ हाँ हाँ, आता आता, दैट इज द डेफिनेट रेड फ्लैग। अगर आप रेडी नहीं है, आपको एग्जाम की डेट आप अपन खुद चूज करना रहता। मतलब ऐसा नहीं है कि साल में 2 बार होता, 3 बार होता एग्जाम, वैसा नहीं है। साल के 365 डेज एग्जाम होता, आप चूज कर लेना एनी डेट। तो जब आप रेडी है उसी दिन आप डेट सेलेक्ट करो, हम्म, आप सेंटर सेलेक्ट करो और जाके लिखो। अरे अब रेडी नहीं है तो डोंट रश इनटू इट, ठीक है? क्योंकि अगर आप एक बार फेल हो गए तो वो एक रेड मार्क आपके पूरे सीवी पे रह जाता हमेशा के लिए कि ये बंदा फेल हुआ था बोल के। हाँ, मगर ऐसे लोग भी हैं जो कि फेल हुए बाद भी बहुत अच्छी जगह मैच हुए हैं। बट अगर आप स्टेप्स में फेल हो रहे हैं तो आपको दूसरे एस्पेक्ट्स में, जैसे कि इलेक्टिव्स, रिसर्च, वॉलंटियरिंग वर्क, नेटवर्किंग, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता। तो इट इज वेरी एडवाइजेबल, आप अगर रेडी नहीं है तो मत लिखो स्टेप्स, अच्छा अच्छा। आप और एक चीज, रेडी हुए बाद ही आप एग्जाम डेट लो। हाँ, स्टेप है। और एक चीज क्या है, स्टेप जी 1 के फर्स्ट, बाद स्टेप 2 कितने कितने दिन तक ले सकते हैं, वो तो क्या टाइम टाइम रहेंगे? स्टेप 2 कभी भी दे सकते हैं आप। जैसा मैं बोला, स्टेप 1 का स्कोर 7 साल तक वैलिड रहता। तो अगर आप थर्ड ईयर में स्टेप अच्छा। 1 दे दिए तो आप हम्म, फाइनल ईयर इंटर्नशिप 1 2 3 4 5, आप ग्रेजुएट होने के 5 साल तक आप स्टेप 2 दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। और स्टेप 2 लिखने के बाद मैच के वास्ते कब तक अप्लाई कर सकते हैं, टाइमिंग? अगेन सेम 7 इयर्स, आपका स्टेप 1 जब लिखे आप उसके 7 इयर्स के अंदर आप अप्लाई कर देना। अच्छा अच्छा। जी तो ठीक है सर। सर, इसमें प्रिपरेशन देन डज इट हेल्प इन नीट पीजी? यस माँ, डेफिनेटली। मैं ऐसा तो नहीं बोलता हूँ कि अगर आप एमएलई कर लिए तो पीजी आप होते इजी होगा, वैसा नहीं है। नीट पीजी इज टफर एग्जाम देन यूएसएमएलई। मैं खुद ट्राई करा सा हूँ, मतलब मैं नीट नहीं लिखा था एक भी, बट आई हैव सीन माय फ्रेंड्स प्रिपेयरिंग फॉर नीट पीजी। बहुत दिमाग खराब प्रिपरेशन रहता है उन लोगों का। दे गिव सम रैंडम सिंबल, डिपार्टमेंट का सिंबल लेके पूछ देते। मतलब एज अ डॉक्टर वाई एम आई सपोज टू नो दैट? मतलब बहुत बेकार पढ़ाई रहती है नीट पीजी की, ऐसा मेरे को पर्सनली दिखता। तो ओके, रट्टा रट्टा रहता सर। इन सेंस कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं। नीट पीजी के प्रिपरेशन में आपको बस फैक्ट्स बटी मारना है। एमएलई करने के टाइम पे यू विल हैव वेरी सॉलिड क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स। हमीद भाई, और एक बात है, वो जो अपन सीवी बिल्डिंग बोलते हैं ना, तो मैं सुना कि अपन यहाँ पर कोई अगर सोशल सर्विस या फिर कोई काम किए, कुछ सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीजें भी वाकई में वहाँ पर हेल्पफुल होता है, या फिर ऐसी खाली बात है? जी जी, बेशक बेशक, नहीं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग टू इम्प्रूव योर सीवी। मैं खुद मेरा एक्सपीरियंस बोलता हूँ। मैं जैसा बोला कि मैं थर्ड और फाइनल ईयर मेरा सीवी बिल्डिंग में डाला। मैं उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से हूँ, तो मैं और मेरा एक हम्म, दोस्त है, हम लोग हर चीज साथ में ही करें। स्टेप 1 साथ लिखे, अब स्टेप 2 भी साथ ही लेके, और इंशाल्लाह साथ ही यूएस जाने वाले हैं। तो हम लोग जो है फाइनल ईयर में एक सोशल कॉज के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करे थे, ओएमसी केयर्स वेल के। अच्छा वो अच्छा। इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको एक आइडिया होना है चाह रहा था बोल के। तो बेसिकली ओएमसी केयर्स करके स्टार्ट करें हम लोग। इट इज अ वॉलेंट्री, मतलब सिर्फ मेडिकोज के लिए ही वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी है वो। हम लोग टाइम टू टाइम जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट करते रहते हैं, एंड वील टेक इन मेडिकोज ताकि वो जाके वॉलंटियर कर सकना। अच्छा, इसके पीछे मकसद क्या था? बिकॉज व्हेन आई वांटेड टू वॉलंटियर, दे आर, आप यकीन नहीं करते, लोग वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज देने के लिए पैसे ले रहे हैं मालूम, अगर एक प्रॉपर सर्टिफिकेट देना है आपको तो। हाँ हाँ तो आई फेल्ट कि हाँ। अरे भाई, ये तो खुला खुला नाइंसाफी है, मैं काम कर रहा हूँ और फिर मैं ही पैसे दूं, ऐसा नहीं चलता बोल के। तो मैं और मेरा दोस्त हम लोग मिलके ही अपनी वो एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल टिल नाउ। तो वो चल रही है अभी। सर वन ऑफ इनसा माय इनसा फ्रेंड्स भी हम लोग फेसिंग वही प्रोवाइड कर रहे हैं। डिफिकल्टीज जी जी। in getting parents permission to do step 1 sir. हमने समझा नहीं क्वेश्चन आपका।
Sir, one of my friends is facing problem in getting permission to give stipend, sir, like in financial state and also in in his capabilities. अब वो देखिए बहुत ज्यादा पर्सनल मामला हो गया वो, उसके मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बस मेरे से जितना हुआ आई विल प्रे फॉर देम कि जो भी उनके हक में बेहतर हो वो हो। आप इनको ये एडवाइस करिए कि इस्तिखारा करिए, जो भी है दुआ करके आगे बढ़िए, जो होना है वही होता। तो मतलब एक चीज अगर बार बार आपसे मतलब आपके अगेंस्ट जा रही है, तो आई फील कि इट इज बेटर टू लीव इट एट दैट। आप पेरेंट्स के अगेंस्ट चाहे कोई चीज करना, मैं कभी एडवाइस नहीं करूंगा आपको। जब तक आपके माँ बाप की दुआएं हैं जब तक ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज जीएमसी डब्ल्यूएनपी वेरीफाइड फॉर ईसीएफएमजी? सुहेला रऊफ, आई एम नॉट श्योर मा। व्हाट यू कैन डू है, आप लोग जाके ईसीएफएमजी की वेबसाइट पर सर्च करिए, वहां पे एक लिस्ट दिया हुआ है था। यू कैन सर्च योर कॉलेज नेम इन दैट, अगर उसमें आपका नाम रहा तो वेरीफाइड है मतलब। ठीक है। Then next, what is the difference between PLAB and USMLE? PLAB is basically for UK. इनफैक्ट ब्लैब को वो लोग रीनेम करके UKMLE करने वाले हैं। जैसे USMLE था, वो लोग UKMLE करने वाले हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि प्लैब इज कंसिडरेबली चीपर। चीपर मतलब एकदम वो भी नहीं है, बट आपको जितना खर्चा USMLE में होता उतना आपको UKMLE या फिर प्लैब में नहीं होता। सेकेंड, आपको सर्जिकल स्पेशलिटीज मिलना प्लैब में ईजियर है कंपेयर्ड टू योर USMLE। बट बहुत सारे जने प्लैब प्रेफर इसलिए नहीं करते क्योंकि वहां की वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज्यादा खराब है। मतलब वन ऑफ द रीजंस, मेन रीजंस इंडिया के डॉक्टर्स बाहर इसलिए जाना चाह रहे हैं क्योंकि इंडिया में वर्क बहुत ज्यादा करा रहे हैं और पे बहुत कम कर रहे हैं। यूएस में आपको कंसिडरेबल वर्क है और उसके लिए अच्छा पे है, बट अगेन यूके में फिर वही बात आती है, आपको काम ज्यादा है, पैसा कम है वहां पे बल्कि। बट इट इज अ गुड ऑप्शन अगर आपको वेस्टर्न, अगर इंडिया छोड़ के जाना ही है, वेस्टर्न डिग्री होना ही है, और इफ यू नॉट विलिंग टू उतना इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं आप, तो डेफिनेटली प्लैब ट्राई कर सकते हैं आप। अगर आप लोगों को प्लैब के ऊपर एक अलग से सेशन होना, तो आप उमर या फिर फारिया इन लोग को टेक्स्ट करके बोलिए, अगर ये चाहिए तो आई कैन टेक अ सेशन ऑन दैट आल्सो। सर, व्हाट इज द चांसेस ऑफ मैचिंग आफ्टर स्टेप 1 एंड स्टेप 2? आई मीन व्हाट इज द प्रोपोर्शन? ये क्वेश्चन ऊपर नीचे आ जा रहे हैं बहुत। हम्म So what are the chances of matching after step 1 and step 2? I mean, what is the proportion of people who pass step 1 and step 2 and end with no match? Basically, what is the chances of failure after passing step 1 and step 2? देखिए अलविया इरशाद, step 1 and step 2 is just a part of the process. उसको छोड़ के आपको बहुत सारी चीजें करना है before you can submit your application. अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कितने लोग मैच नहीं होते, तो according to last year's data, 2/3 of all the people who applied into internal medicine matched. मतलब 66% पीपल जो अप्लाई करते मैच हो जाते। तो वो एक स्टेटिस्टिकल डेटा है, आप उसके इंटरप्रिटेशन आप खुद कर ले सकते हैं। बट उतना हार्ड नहीं रहा जितना पहले था। आज से 5-10 years बैक इट वाज वेरी हार्ड मैचिंग इनटू IIM आल्सो, बिकॉज नो वन न्यू एग्जैक्टली करना क्या है, टाइमलाइन क्या रहता। बट आजकल वो ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है, पीपल आर वेरी विलिंग टू हेल्प यू आउट, तो इट इज कंसिडरेबली इजियर टू मैच इनटू IIM एटलीस्ट। एंड आई फील इट्स अ रिस्क वर्थ टेकिंग। अब मेरे इमीडिएट पहचान में तो ऐसे बहुत कम जने हैं जो मैच नहीं हुए। मेरे कॉलेज से लास्ट ईयर 16 जने अप्लाई करे एंड 15 ऑफ देम मैच्ड, ओनली 1% डिड नॉट मैच। तो ठीक है, होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। देन सैयद फैज अहमद इज टेलिंग व्हाई कांट वी गेट ब्रांचेस लाइक न्यूरोसर्जरी आफ्टर रिसेंटली या फिर हेलो। हेलो, हाँ हाफिज भाई, वो इंटरनल मेडिसिन है हो या फिर सर्जरी या रेडियो, दोनों में पे ज्यादा रहता क्या उसमें, स्टाइपेंड वगैरह इसमें, या फिर जैसे हमारे इंटरनल इंडिया में मेडिसिन क्या और रहता सर्जरी की तरफ पूछ रहे कुछ? हैं क्या आप? हेलो। नहीं, जैसे कि इंडिया में कैसा है बोलते हो, कुछ रेडियोलॉजी वगैरह में पीजी में ज्यादा स्टाइपेंड है, ईएनटी वगैरह में थोड़ा कम रहता, तो ऐसा वहां पर भी है वेरी क्या, कुछ में एविडेंटली ज्यादा कुछ में कम, ऐसा कुछ रहता है मेडिकल क्या? ब्रांच में पैसा बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एनी मेडिकल ब्रांच। मतलब बहुत ज्यादा, वो तो इतना एकदम डबल बल्कि मैं नहीं बोल रहा हूँ। यू विल अर्न मोर बीइंग अ सर्जन देन अच्छा। यू कैन बीइंग अ इंटरनल मेडिसिन गाय। इसीलिए तो यू कैन नॉट गेट दी स्पेशलिटीज इजीली। अब वहां के जो यूएस के लोग रहने वाले हैं, दे अच्छा। आल्सो वांट अ हाई पेइंग जॉब ना।
इसलिए वो लोग सब ये कॉम्पिटेटिव ब्रांचेस को ही प्रेफर करते हैं एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट. दैट ब्रिंग्स अस टू दिस क्वेश्चन कि न्यूरो सर्जरी क्यों नहीं मिल सकती, क्योंकि न्यूरो सर्जरी इज द हाईएस्ट पेइंग स्पेशलिटी. तो इट इज मोर और अच्छा लेस पूरे यूएस के लोग ही ले लेते वो. तो आप, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू compete स्पेशली विदाउट अ वीजा, विदाउट अ ग्रीन कार्ड. अच्छा, जज़ाकल्लाह। तो फिर जी. न्यूरो नेक्स्ट सर्जरी मिलती क्वेश्चन. कैसा? न्यूरो सर्जरी, अगर इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स को न्यूरो सर्जरी लेना है तो वो लोग कैसा लेंगे? नहीं अब तक हिस्ट्री में कोई भी नहीं है वैसे. सिर्फ रेसिडेंट्स, ग्रीन कार्ड्स, कोई टॉप ब्रांचेस आते हैं? देखिए बेसिकली अगर आपको न्यूरो नहीं सर्जरी हाफिज होना भाई है तो आपको यू हैव टू शो देम कि यू आर सो मच इंटरेस्टेड इन न्यूरो सर्जरी कि यू हैव ऑलरेडी स्पेंड सो मच टाइम इनटू इट. वहां के जो न्यूरो सर्जरी के रेसिडेंट्स थे ना, वो लोग एवरीवन इज इजीली 30+. वो लोग 5 से 6 साल खाली रिसर्च में निकाल देते न्यूरो सर्जरी के पीछे. वैसा है. तो एक कहावत है कि न्यूरो सर्जरी अगर करना है तो न्यूरो सर्जरी की अम्मा, न्यूरो सर्जरी के बाबा कुछ पैदा होना पड़ता. नहीं तो मुश्किल है न्यूरो सर्जरी करना वहां पे. मैं रिसेंटली जी एक 2-3 साल बैक सियासत में एक बच्ची का मैसेज आया था, हैदराबाद के थे जी शायद, जी, मरियम न्यूरो अफीफा. सर्जन कुछ पोस्ट आया था। हाँ हाँ, वो उस्मानिया के थे ना, यहीं के तो थे वो, उन्हों. अच्छा हाँ हाँ उस्माने की थे, तो उन्होंने भी हाँ बोल तो उस्मानिया ऐसा के. वहां पर जाके करे थे। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने पूरा उस्मानिया के से करे. उन्होंने एमबीबीएस उस्मानिया से करे, फिर जनरल सर्जरी भी उस्मानिया से करे, देन न्यूरो सर्जरी भी उस्मानिया से ही करे. जो उन्होंने उस्माने से यूएस करे। यूएस नहीं गए कभी भी. अच्छा अच्छा। Okay, sir, can we get gynecology through USMLE and can you please repeat the specialty we can do through USMLE? तहसीन इजीली जो टॉपिक्स आपको मिल जा स्पेशलिटीज मिल जाते हैं वो है इंटरनल मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन, पैथोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, टू सम एक्सटेंट रेडियोलॉजी, ऑल सॉरी न्यूरोलॉजी, और एक कुछ बोल रहा हूँ मैं. ओके, तो ये आपको इजीली मिल जाते हैं. इससे हटके आपको जनरल सर्जरी अगर होना या फिर कोई ऐसा कॉम्पिटेटिव स्पेशलिटी होना तो इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट मेहनत करना पड़ता और बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता. एंड ये मेहनत जाया नहीं है आपकी. यू विल अर्न वेरी वेल कंपेयर टू योर peers. Hope that answers your question. Then Sama is asking, sir, if you want to start preparing, what are the resources we should use? Okay, Sama, step 1 के लिए we'll have a separate webinar ना. ठीक है. मतलब अगर मैं जल्दी जल्दी में बोल दूंगा, दैट विल अगेन भी कोई यूट्यूब वीडियो पे भी बोल दे सकते हैं आपको. अगर आपको एक्चुअली में कुछ वैल्यूएबल इंसाइट होना है तो आई विल हैव टू टेक सम टाइम, जो कि अब नहीं है अपने पास. तो इंशाल्लाह विल डू अनदर वेबिनार ऑन दिस एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. अगर नहीं आपको जल्दी जाना है बोले तो देखेंगे. व्हेन कैन यू गिव स्टेप 2? आप स्टेप 2 कभी भी दे सकते हैं. मैं जो है इंटर्नशिप में दिया एंड दैट इज द मोस्ट पॉपुलर टाइम टू गिव योर स्टेप 2, इंटर्नशिप में या इंटर्नशिप के बाद. उससे पहले भी दे सकते हैं आप अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई तो, बट जनरली कोई उतने फास्ट तो कहीं ना रहते. व्हाट इज द डिफरेंस आगे बिटवीन क्वेश्चन है। रेजिडेंसी एंड एमएस एंड एमडी? वही चीज है, इट इज अ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स. यूएस में देयर इज नो डिग्री कॉल्ड एमबीबीएस. वो लोग डॉक्टर एमडी करने के बाद ही बोलते हैं. इसलिए आप देखिए वो लोग के लिंक्डइन अकाउंट्स में या फिर वगैरह डॉक्टर सो एंड सो बाजू एमडी लिखा हुआ रहता. उन लोगों के पास एमबीबीएस नाम की डिग्री नहीं रहती. एमएस एंड एमडी इज द सेम एज रेसिडेंसी. ये मिर्जा फजल भाई और एक क्वेश्चन है। सैफुल्लाह बेग. हाँ हाँ, फजल बोलिए. आगे क्वेश्चन क्या है बोलते, आप जैसे कि आप बोले ना वहां पर, जैसे कि अपने अलॉटमेंट के जैसा यूजी में ऐसा कॉलेजेस ये करते, वहां पर ऐसा चूज करना पड़ता है कि प्रेफरेंस देना पड़ता है। तो वहां पर समझो मैं स्टेप पहला पहला पोजीशन, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी ऐसा करके एक बाद एक दे दिया। तो मैं पहले रेडियोलॉजी दिया, उसके बाद सर्जरी दिया, उसका फिर ऐसा, तो ऐसा भी अलग अलग बोल तो दे सकते हैं क्या? मैं आखिर में इंटरनल मेडिसिन, अगर मेरे को सर्जरी में हाँ नहीं अच्छा मिला अच्छा, या फिर ठीक है इसमें नहीं ठीक मिला है. तो आई इंटरनल आई मेडिसिन गॉट में योर कम से कम तो क्वेश्चन. मिल जाना चाहिए। जी जी फजल, मेरे को आपका क्वेश्चन समझ में आ गया. और ये बहुत अच्छा पॉइंट रेस कर रहे हैं उन्होंने. ये पूछ रहे हैं कि अगर मिलना मुश्किल है तो अपन स्टार्टिंग में रेडियो न्यूरो दल के लास्ट में इंटरनल मेडिसिन क्यों ना जा सकते हैं? क्योंकि क्यों बोले तो आप जो ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस डालते ना, वो जो है प्रोग्राम्स को भी दिखता कि इन्हें पहले न्यूरो डाला फिर लास्ट में आईएम डाला बोल के. तो वो लोग ऐसे बंदे को प्रेफर नहीं करते जो कि आईएम को सिर्फ एक लास्ट रिजॉर्ट के ऐसा यूज कर रहा. अगर आपको आईएम करना है तो फुल ऑन आपको प्रूव करना पड़ता है कि मेरे को आईएम में ही इंटरेस्ट है. अगर आपको न्यूरो करना है तो आपको न्यूरो में ही इंटरेस्ट है, आपको बताना पड़ता है. समझे आप फजल? अच्छा, जी. जजाकल्लाह, तो समझ गया। नेटवर्किंग के बारे में क्वेश्चन बार बार आ रहा कहते. मिर्जा सैफुल्लाह बेग, ही इज अ डॉक्टर फ्रॉम
उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, बैचमेट है नो। बहरहाल, तो नेटवर्किंग के ऊपर यस वी कैन टॉक इन डिटेल, बात करेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड आप लोगों को हेल्प करने के लिए, मैं हमेशा रेडी हूँ। बट एट दिस सिचुएशन अभी बात करके फायदा नहीं है, बोल रहा मैं आप लोगों से। क्योंकि अगर अभी मैं आपको स्टेप वन की प्रिपरेशन के बारे में सब बोल दिया, इलेक्ट्रिक्स के बारे में बोल दिया, तो आपकी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हुआ था, आपको बैठ के कंसोलिडेट करने नहीं आता कुछ भी। एट द एंड ऑफ द डे दिस होल वेबिनार विल नॉट बी यूजफुल फॉर यू। जी। देन व्हाट इज मैचिंग एक्चुअली मीन एंड व्हिच नेटवर्किंग इज सो हेल्पफुल? मैचिंग मतलब बेसिकली सीट मिलने को ही मैचिंग बोलते हैं, क्योंकि वहां पे आपको इंटरव्यू देना है। तो मतलब अब इंडिया में नीट में क्या एग्जाम लिख दो, कहीं ना कहीं सीट आती, तो उसको सीट अलॉटमेंट बोलते हैं। यहाँ पे आपको इंटरव्यूज देना है, इंटरव्यू देने के बाद वो प्रोग्राम आपको सेलेक्ट करना, तो वो प्रोसेस को मैचिंग बोलते हैं, बस उतना ही। इट्स जस्ट अनदर वर्ड, कुछ भी तो मतलब नहीं है उसका। सर अगर फोर्थ ईयर में तो विद रेगुलर सब्जेक्ट यूएसए मिलेगा प्रेप करना के लिए, विल इट बी रिस्की टू पास फोर्थ ईयर? नहीं माँ, सायमा, फोर्थ ईयर इज अ वेरी गुड टाइम टू एट योर स्टेप वन, क्योंकि आपके फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट्स आर इन लाइन विथ योर एमबीबीएस के, सॉरी विथ योर फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स। अब जैसे कि आपको फाइनल ईयर में पढ़ना मेडिसिन है, सर्जरी है, गाइनॉब्स है, वगैरह वही सब्जेक्ट है, स्टेप वन में भी आपको सेम नॉलेज काम आती। मेरे एक बैचमेट थे, प्रणति कुछ नाम था उनका, शी डिड हर स्टेप वन इन फाइनल ईयर। एक महीने फाइनल के एग्जाम से एक महीना पहले स्टेप वन दिए, पास हो गए, फाइनल ईयर के एग्जाम्स लिखे, डिस्टिंक्शन आया, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में गोल्ड मेडल आया उनको। तो डेफिनेटली फाइनल ईयर इज द बेस्ट बेस्ट टाइम दैट यू कैन राइट फॉर, दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर यूएसएमएलई। थर्ड ईयर में भी दे सकते हैं आप, बट फाइनल ईयर इज ऑल्सो गुड। और आपका फर्स्ट स्टेप का इसमें पढ़ना और एक क्वेश्चन। आपका मोरलेस आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की पढ़ाई खत्म हो जाती, मतलब कवर होता सिलेबस वो। जी। और एक क्वेश्चन है कि अपने को लैंग्वेज फ्लुएंसी बहुत ज्यादा, वो तो ऐसा, और उसमें तो थोड़ा बहुत रहता है इंडियन, थोड़ा बहुत समझो लैंग्वेज फ्लुएंसी उतना अच्छा नहीं रहता, तो इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंसी बहुत ज्यादा अच्छा रहना वो मैटर करता क्या मैचिंग में? देखिए, अगर आप इंटरेस्टेड है यूएसएमएलई में एंड आपको अगर मालूम कि आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी अच्छी नहीं है, तो यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट नो ओनली ना। आप, अरे मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं मैथ्स नहीं हो तो छोड़ देना, सेंस नहीं बनाना। आपके अभी 3-4 साल है, हम्म। 2-3 साल तो है, 2-3 साल प्रैक्टिस करिए अपनी इंग्लिश के ऊपर। ऐसा तो नहीं है कि चेंज नहीं हो सकता, बल्कि। तो आई एम टेलिंग कि नहीं वो तो है, मीन्स वो मैटर करता क्या उसमें? जी, तो वो तो है, लेकिन उसमें मैटर करता क्या बहुत ज्यादा ऑब्वियसली ही, मैटर ऐसा करता पूछ है रहा ना। हूँ। आप जब इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू में उनको इम्प्रेस नहीं कर सके, तो दे विल नॉट गिव यू एन अपॉर्चुनिटी ना। अब अच्छा, इंटरव्यू देने वाले तो पूरे दे विल जजाक। बी मोस्टली यूएस सिटीजन ओनली ना। हाँ। जी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हर्ड आफ्टर रेडियोलॉजी हो गया ये, कैन यू गिव सम लाइट ऑन पेपर वर्क रिक्वायर्ड फॉर यूएसएमएलई? ओके, तो यूएसएमएलई में पेपर वर्क क्या है पूछना चाहिए भैया। तो बेसिकली आप जब स्टार्ट करते हैं ईसीएफएमजी के लिए अप्लाई करना, आपको बस वंस यू अप्लाई, वो लोग आपको क्रॉस चेक करते हैं कि आर यू द सेम पर्सन नॉट, पासपोर्ट वगैरह सबमिट करना रहता। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पासपोर्ट बन के रहना पड़ता आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे समझ में नहीं आ रहा पेपर वर्क का क्या मतलब है बल्कि। जुवेरिया, कैन यू बस वंस एलैबोरेट ऑन योर क्वेश्चन, पेपर वर्क मतलब एग्जैक्टली क्या चाहिए आपको? लाइक डॉक्यूमेंट्स नहीं, देखो बस ईसीएफएमजी वेरिफिकेशन करने के लिए आपको बस पासपोर्ट की जरूरत है। देन आफ्टर दैट आप जब वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, जब आपको और एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगता है। फिर जब आप ईरास एप्लीकेशन में अप्लाई करते हैं, तो कोई एक अलग ही सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगता है। एट दिस स्टेज अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो आई डोंट थिंक दैट शुड बी योर कंसर्न। वो चीजें पैसिवली साइड बाय साइड चलते रहते हैं। अभी उसके लिए टेंशन मत लीजिए। वॉलंटियरिंग सर्टिफिकेट के लिए क्या काम करना पड़ता? क्या करना पड़ता बोल, तो वॉलंटियर करना पड़ता। volunteering certificate के लिए, volunteer in the sense you can get together with any organization that is doing volunteering work। अब जैसे कि हमारा एग्जांपल ले लो, वी आर ओएमसी केयर्स, हम लोग कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं एंड वी ट्राई टू इन्वॉल्व एज मेनी मेडिकल स्टूडेंट्स एज पॉसिबल, ताकि वो लोग भी वॉलंटियर कर सके और उनके पास भी सर्टिफिकेट आ सके। उसको छोड़ के व्हाट यू कैन डू इज, जब फ्री हेल्थ कैंप्स होते हैं ना, यू कैन गो ओवर देयर एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन दोस फ्री हेल्थ कैंप्स, आपको उसका भी सर्टिफिकेट मिलता।
या फिर अगर कोई कुछ ड्राइव कुछ वो ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव होती है, या फिर ट्री प्लांटिंग ड्राइव होती है, कुछ भी ऐसा हो रहा तो अटेंड कर लेते जाइए, सर्टिफिकेट रखते जाइए आपके पास। ओके सर, एमबीबीएस का ईयर का कोई इंस्टेंट में पास करे तो रेड फ्लैग है, आता नहीं वहाँ। उमर हुसैन, इंस्टेंट में पास होना विल नॉट रिफ्लेक्ट मच। सर इफ आई डू स्टेप 1 आफ्टर थर्ड ईयर, स्टेप 2 आफ्टर फोर्थ ईयर, ये 2 इयर्स गैप से कुछ फर्क पड़ता है मैचिंग में? नहीं, दैट इज द मोस्ट आइडियल सिचुएशन। थर्ड ईयर में आप स्टेप 1 लिख दिया, फाइनल ईयर में स्टेप 2 लिख दिया, बोलते हो गैप इन द सेंस आपके ग्रेजुएशन के बाद और अप्लाई करने से पहले गैप में रहना, समझ रहे हैं आप? मैं मेरा फर्स्ट स्टेप थर्ड ईयर में लिखा और सेकंड स्टेप अब लिख रहा हूँ इंटर्नशिप में, तो 2 ईयर का गैप आ गया मेरे को, बट दैट इज नॉट मेक एनी डिफरेंस। वहां के लोग भी वैसे ही करते हैं ना, दे राइट द स्टेप 1 आफ्टर यूएस के स्टूडेंट्स, आफ्टर स्टेप 1 सॉरी आफ्टर सेकंड ईयर स्टेप 1 देते, आफ्टर फाइनल ईयर स्टेप 2 देते वो लोग। अच्छा, सायमा बोल रहे हैं ऊपर के मैसेजेस स्किप हो गया, उसमें सॉरी। व्हाई इज जनरल सर्जरी मोस्ट सॉट आफ्टर इन यूएसए बट नॉट चोजन इन इंडिया? अच्छा, फहीम पूछ रहे हैं क्योंकि बेसिकली सर्जरी इंडिया में बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया, समझो भाई, इन दिस सेंस कि जो लोग एट द पीपल हु सिटिंग एट द टॉप दे डोंट वांट देयर जूनियर्स टू कम अप, तो उससे बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी फैलते जा रही है, एंड बहुत ज्यादा कॉलेजेस खुल रहे हैं और वो कॉलेजेस में सर्जरी के सीट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, तो जनरल सर्जन कहीं ना कहीं तक सैचुरेट हो गए, तो अब पीपल आर नॉट प्रेफरिंग जनरल सर्जरी, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, इफ यू आर पैशनेट इनफ आप कहीं भी सक्सीड हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नहीं रुकिए। Okay, so what about GRE, TOEFL and other similar exams we need to appear? अच्छा, माइशा फातिमा आंसर कर दिया इसको कि ओईटी इज ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, ये मैं लास्ट वीक ही दिया। ओईटी आपको वैलिड 2 साल के रहता खाली, तो इट इज बेटर आप आपके मैच होने के करीब ये एग्जाम दिए, तो अगर आप सेकंड ईयर में बैठ के मैं स्टेप 1 से पहले ओईटी देता हूँ मैं जो बोले, तो 2 साल में आपको एक्सपायर हुआ था, फिर नया ओईटी देना पड़ता, तो दैट विल बी थोड़ा nonsensical. So OET is your language exam. You have to prove कि you are proficient in your English before you can apply. So OET is a must. Step 1, step 2 के साथ OET is a must before you can apply for your ERAS application. Is step 1 or step 2 necessary for electives? नहीं माँ, there are some universities who that give step 1 and step 2 without electives. But at least अगर आप step 1 दे दिए तो you will know कि आप करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं ना। अगर डायरेक्टली आप electives को चले गए तो because electives is a major money burner. आप electives को जब करते हैं 6 to 7 lakhs होते हैं आपको, तो बगैर step 1 दिए वो करना, I would not advise it. At least आप step 1 लिख दीजिए, फिर electives कर लीजिए। Hope that answers your question. Then sir, अगर first year में instant नहीं, so how to manage university exams with USMLE? Like I am in third year right now. I want to start dedicated study from now. I need to. Okay. Internal medicine. Then how? And I've also been missing posting through my dedication period. तहसीन, आप कौन से कॉलेज से हैं? ओके, शायद एक्टिव शादान से हैं आप। आप लोगों के पास पोस्टिंग को कितना सीरियसली थे? लाइक अब हमारे पास उस्मानिया में दे यूज्ड टू टेक इट मॉडरेटली सीरियसली। अगर आए तो वेरी गुड, नहीं आए तो पुकारा करते, बट अगर बिल्कुल ही नहीं आए तो दे वोंट इवन नो कि यू आर देयर और नॉट। तो फॉर मी इट वाज इजी टू स्किप माय पोस्टिंग्स। और वेरी फ्रैंकली एमबीबीएस की फर्स्ट सेकंड टू फोर्थ ईयर के पोस्टिंग्स में क्या ही सीखने वाले हैं आप? मतलब बिल्कुल मैं उस्मानिया का रह के ये बोल रहा हूँ कि आई डिड नॉट लर्न मच इन माय पोस्टिंग्स। तो पोस्टिंग्स जाइए, अच्छी चीज है, बट अगर पोस्टिंग से बेहतर कोई चीज आपको करने के लिए मिल जा रही है तो छोड़ दो पोस्टिंग्स, कुछ भी नहीं होता, यू विल नॉट लूज ऑन एनीथिंग। ओके, मैं भी सेम करा था कि मैं भी अपनी पोस्टिंग वगैरह सब छोड़ दिया था, एंड आई गिव माय स्टेप 1। अब वो टाइम पे एकदम ऐसा आ गया था कि नहीं पहले स्टेप 1 ही देना है, फिर बाद में सोचेंगे बाकी का, बिल्कुल। तो दैट्स व्हाई आई स्किप्ड एवरीथिंग एंड आई गिव स्टेप 1। तो सर, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर स्टेप 1? व्हाट रिसोर्सेज डिड यू यूज? ओके, अलविया इरशाद, इट इज अ वेरी बिग डिस्कशन। मैं सिर्फ नाम बोलो बोल के बोलता, आई गिव यू द नेम्स, बट बाकी की डिस्कशन लेट्स डू इट एट सम अदर टाइम। आई यूज्ड यूवर्ल्ड, यूज करा मैं यूवर्ल्ड ऑफलाइन, आई डिड नॉट बाय एनीथिंग, एंड आई यूज्ड पैथोमा। पैथोमा सेकंड ईयर में देख लिया था मैं, बोर्ड्स एंड बियॉन्ड एंड फर्स्ट एड, दैट्स इट। Suppose if you want to return back to India after doing essentially 4 to 5 years of work, then how will it
how will it be to work in India? Definitely अब इंडिया में आने के बाद आपको better salaries मिलती है compared to your peers, but it will not be equal to what you are getting paid in the US. समझ रहे हैं आप? मतलब आप अभी भी अच्छा ही कमाते हैं compared to your peers, but आप जो यूएस में रह के कमा सकते हो उतना नहीं कमाते आप. You will path of first aid, yes. अगर प्रेप स्टार्ट करना है तो ये समरी इन फोर्थ ईयर विल एट वेलफेयर, यस. सपोज यू वांट टू रिटर्न बैक, ये हो गया. इफ आई एम मिसिंग एनी क्वेश्चंस आप लोग माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं. यू वर्ल्ड पैथोमा एंड फर्स्ट एड, बस. एंड बोर्ड्स एंड बियॉन्ड, बोर्ड्स एंड बियॉन्ड बोल के एक रहता है रिसोर्स. बेसिकली फर्स्ट एड इज अ वेरी कंसाइज्ड बुक, तो उसके एक एक लाइन में से मतलब निकालना मुश्किल रहता. तो यूजिंग बोर्ड्स एंड बियॉन्ड मेक्स इट इजियर फॉर यू. कंपल्सरी नहीं है वो, यू कैन यूज. देयर अदर रिसोर्सेज आल्सो लाइक स्केची है. ये रिसोर्सेज अगर आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, मैं यूज नहीं करा. इट डिपेंड्स आपका लर्निंग स्टाइल कैसा है. व्हाट अबाउट ऑस्ट्रेलिया एंड यूएई? तो फारहा एंड उमर, आप लोग एक बार से लिए एक बार मालूम कर लीजिए कि ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल यूएई और इसके बारे में अगर सेशन होना है तो इंशाल्लाह वी कैन ट्राई फॉर दैट आल्सो. अभी के लिए तो आई डोंट थिंक मेरा गला इजाजत देता मेरे को इतना बात करने की. और कुछ क्वेश्चन में मिस करा क्या? चैट बॉक्स में तो पूरे हो गए sir. कुछ और Sir, क्वेश्चन है किसी के? someone asked, rotatory international join करना helpful रहेगा क्या? रोटरी इंटरनेशनल ज्वाइन करना, या इट इज ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज के लिए चांस दे रही, तो डेफिनेटली इट विल बी यूजफुल. यू कैन गो एंड यू कैन गेट सर्टिफिकेट्स फ्रॉम देयर. इट विल बी अ गुड इनफ एक्सपीरियंस फॉर यू. हाँ, you can also try to get for better other opportunities also. जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा रोट्रैक्ट के साथ, इट इज मोर अबाउट सर्टिफिकेट्स एंड इट्स लेस अबाउट द वर्क. तो आप वहां पे जाके इंटरव्यू में बस आपको सर्टिफिकेट दिखाना नहीं है, इंटरव्यू में यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ एज एन ऑल राउंडेड पर्सनालिटी. तो अब मैं जो है, इफ आई गो इनटू इंटरव्यू, आई विल टेल वेरी प्राउडली कि यस सर, आई वाज अ फाउंडर, आई वाज अ को फाउंडर ऑफ दिस सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन. हम लोग ये और ये विजन के साथ स्टार्ट करे थे एंड इट टर्न आउट टू सो एंड सो अमाउंट. रोट्रैक्ट में क्या है बोलते हो, दे डू प्रोजेक्ट्स ओनली फॉर द सेक ऑफ सर्टिफिकेट्स वगैरह दिखा मेरे को, बट आई एम नॉट टेलिंग नॉट जॉइन रोट्रैक्ट, मर्जी आपकी है. सर सीवी बिल्ड करने के लिए वॉलंटियरिंग वर्क के अलावा और कुछ कर सकते हैं? यस कर सकते हैं. आप रिसर्च कर सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो. सिंपल टर्म्स में जितनी ऑल राउंडेड पर्सनैलिटी आपकी रही उतना आपके लिए अच्छा है. सर एक क्वेश्चन और मिस हो गया, एक क्वेश्चन मिस हुआ. स्टेप 1 का रिजल्ट कब तक आता है? आई मीन गैप बिटवीन एग्जाम डेट एंड रिजल्ट डेट. ये कौन है इतने स्टेप 1 देने से पहले रिजल्ट के बारे में कंसर्न कौन है ये? स्टेप आसिफा 1 शाहीन की एग्जाम और तरफ से. डेट के बीच में 2 वीक्स का गैप आता. मतलब अगर आप ये मंडे को लिखे तो 1 मंडे एंड सेकेंड मंडे छोड़ के वेडनेसडे के दिन, तो मोर और लेस 17 या 20 डेज का गैप आता. सर फर्स्ट ईयर में इंस्टेंट रहना रेड फ्लैग है क्या? नहीं है, इट इज नॉट रेड फ्लैग एट ऑल. सर इज रोट्रैक्ट सर्टिफिकेट कंसिडर्ड? नॉट कंसिडर्ड, इट इज कंसिडर्ड. ऐसा कुछ नहीं है. सिर्फ सर्टिफिकेट अगर आपको होना है तो रोट्रैक्ट इज अ वेरी गुड ऑप्शन. अगर आप लोग सर मतलब इफ यू गाइस आर लुकिंग फॉर वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज, आई एम टेलिंग यू, आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके ओएमसी केयर्स एक बार चेकआउट करिए. मतलब यू कैन गेट गुड अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम देयर आल्सो. सर मेरे को ओके, एक शेख क्वेश्चन था. नोमान, जजाकल्ला सर फॉर प्रेशियस टाइम, जजाकल्ला फॉर लिसनिंग मी आउट. जी. और कुछ सर, व्हाट इज इट अबाउट ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया फातिमा अगेन एक और अलग डिस्कशन है, बट टू पुट इट ब्रीफली, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी जगह है. यू कैन डेफिनेटली गो एंड ट्राई ओवर देयर आल्सो, स्पेशली आफ्टर सम रिसेंटली कोई बिल पास हुआ उसके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू हैव अ शॉर्टेज ऑफ स्पेशलिस्ट्स, नॉट जनरल फिजिशियंस बट स्पेशलिस्ट्स. तो हाउ विल दैट अफेक्ट, उतना क्लियर आइडिया नहीं है मेरे को अभी. आप लोग अगर चाह रहे हैं कि आप लोग को ऑस्ट्रेलिया के ऊपर होना है तो मैं आई कैन फाइंड आउट मोर एंड टेल यू ना. अभी आधी इन्फॉर्मेशन पे मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ. ओके, आगे और कुछ क्वेश्चंस? सर एक क्वेश्चन था.
How to publish research paper या case study? हाउ टू पब्लिश, फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर ना। डायरेक्ट आप लोग 2-3 स्टेप स्किप कर दे रहे हैं। आप लोग लिखिए, लिखने के बाद देखेंगे आप। हाउ टू पब्लिश का सिंपल आंसर यही है कि यू हैव जर्नल्स, जैसे कि क्यूरियस एक जर्नल है। तो अब फिर कौन सा जर्नल सेलेक्ट करना, वो एक अलग डिस्कशन आ जाती है। फिर मोटी मोटी बात ये है कि एक जर्नल रहता, जर्नल को आप मेल करना कि दिस इज माय टॉपिक, दिस इज माय एब्स्ट्रैक्ट। अगर वो लोग इंटरेस्ट दिखाए तो आप उनको पूरा आपका पेपर भेजना, तो वो लोग उसको वेरीफाई करके, इट टेक्स यूजुअली अराउंड 3 to 4 months ऑफ टाइम। वो लोग मल्टीपल चेंजेस बोलते हैं उसमें, आप वो चेंजेस करना एंड देन फाइनली आप सबमिट कर सकते हैं। One more question, sir. सिर्फ MBBS पे लाइसेंस नहीं मिलता, जैसा रेसिडेंसी करना जरूरी है, जैसा जनरल फिजिशियन एक अलग स्पेशलिटी है। नहीं नहीं, एमबीबीएस के बाद यूर जनरल फिजिशियन। ओके, तो सिर्फ आपको लाइसेंस MBBS मिल पे जाता, लाइसेंस नहीं मिलता? मिल जाता, इंडिया में मिल जाता। यूएस में नहीं, एमबीबीएस की डिग्रीज नहीं यूएस है। में तो नहीं, रेसिडेंसी करना इज मैंडेटरी। रेसिडेंसी करने के बाद ही आप डॉक्टर होते हैं वहां पे। वहां पे ओके। प्री मेड स्कूल, रेसिडेंसी करने के बाद ही आप डॉक्टर बनते हैं। अपने पास एमबीबीएस से डॉक्टर बन जाते हैं ना, वहाँ पे वैसा नहीं है। सर रिसर्च स्टार्ट कैसा करना, ओके। अच्छा, कोई टिप्स आप कैसा करें? हाँ हाँ हाँ, मैं अब तक रिसर्च के 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट करा मैं। मतलब मैं आई बी वेरी फ्रैंक विद यू, मैं जो चीज अच्छी करा मैं करा। रिसर्च इज समथिंग आई डिड नॉट मैनेज टू एक्सेल एट। मैं इसके पीछे बहुत हाथा पैरा मारा, बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट गेट वेरी मच डन। बेसिकली रिसर्च स्टार्ट करने के लिए यू डेफिनेटली नीड अ मेंटर। मेरी वैसी गलती मत करिए कि मैं बगैर मेंटर के ट्राई करता हूँ। मैं 2 महीने डाल के ट्राई कर लिया, नथिंग के अमाउंट ऑफ इट। यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ मेंटर। मेंटर कौन रह सकते हैं बोल के बोले तो आपके कॉलेज के प्रोफेसर। टू गेट प्रमोशन फ्रॉम एन एसोसिएट टू असिस्टेंट प्रोफेसर, मिनिमम 2 या 3 पब्लिकेशन होना रहता। तो इवन दे विल ऑल्सो बी इंटरेस्टेड इन डूइंग पब्लिकेशन। तो आप जाके, आपको कुछ अगर आइडिया आ रहा बेसिकली, तो आप बोलिए अरे मैडम मेरे कोई आइडिया आ रहा, अपन करेंगे क्या बोल के। अगर अच्छा आइडिया रहा तो वो आगे बढ़ते, नहीं रहा तो ना बोलते कि नहीं ये इसमें ये बेटर है, ऐसा करेंगे क्या। तो रिसर्च के लिए तो यू हैव टू रिलाई ऑन योर फैकल्टी, या फिर अगर आपको खरीदना है रिसर्च अपॉर्चुनिटीज तो वैसे भी ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं। सो एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इफ आई वांट टू डू यूएसएमएलई व्हाट कैन आई डू, ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा आप बहुत कि ये फर्स्ट ईयर में यूएसएमएलई के लिए क्या करना। पहले तो आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप फर्स्ट ईयर में रह के आपको इतनी अवेयरनेस है कि यूएसएमएलई क्या चीज है। हमको इतना नहीं था। हम लोग सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद एमएलई के बारे में सोचना स्टार्ट करे थे। तो इफ यू आर इन योर फर्स्ट ईयर, फोकस अ लॉट ऑन योर बेसिक साइंसेस, मतलब आपकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये चीजों के लिए अच्छा वेलवर्स हो जाइए, सच दैट इमीडिएटली आफ्टर सेकेंड ईयर आप आपका स्टेप 1 रेडी रहना। नेक्स्ट थिंग व्हाट यू कैन डू फ्रॉम राइट नाउ इज यू कैन लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज टू डू सोशल वर्क। क्योंकि आफ्टर यू गेट इनटू थर्ड एंड फाइनल ईयर आपको टाइम कम मिलना शुरू होता। तो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में आप वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए। उतना ही एट दिस मोमेंट दैट विल बी अ परफेक्ट प्लान फॉर यू। या कुछ और क्वेश्चन मिस हुआ? Sir, can you repeat the 4 parameters to decide that MLE is right for you or not? अच्छा, नंबर 1 तो आई टोल्ड कि विलिंगनेस टू डू इट। क्योंकि मैं स्टार्ट करा थर्ड ईयर में और अब मैं इंटर्नशिप में मेरी हो गई, मतलब 3 साल हो गए और अब तक मेरे को कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला है इसका। तो यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट और प्रिजर्वेरेंस रहना पड़ता है। बगैर प्रिजर्वेरेंस के आप नहीं कर सकते ये। तो इट शुड बी योर नंबर 1 योर इंटरेस्ट टू डू इट। नंबर 2 विल बी योर फाइनेंशियल एस्पेक्ट। नंबर 3 विल बी प्रेफरेंस ऑफ स्पेशलिटी। नंबर 4 will be willingness to move to a foreign country. Yeah. Sir, Sir, USM someone is what asked, year? नेक्स्ट एग्जाम भी देना रहता ना यूएसएमएल के साथ? Yeah, this is a very big concerning point for everyone. इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ TSMC वाले दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकते। बिकॉज अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये कब इम्प्लीमेंट होने वाला है, कैसा इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, नो वन नोज। बट एज
as much as my knowledge goes, next exam will be compulsory to get your degree. तो अगर डिग्री होना है तो एग्जाम लिखना कंपलसरी है, तो मतलब आपको भी नेक्स्ट लिखना पड़ता। सर फोर्थ ईयर में यूएसए में प्रेप करना कैसा है? डेफिनेटली है, प्लीज करिए, जल्द से जल्द शुरू करिए। सो व्हाट आर यू वॉलंटियरिंग ऑप्शंस? वॉलंटियरिंग से मुराद ये है कि अब बेसिकली मैं आपको मैं जो प्रोजेक्ट्स करा उसके बारे में बोलता हूँ। वी डिड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड हैंड्स ऑन हार्ट। Hands on Heart. This was a Telangana wide CPR and first aid training program. तो हम लोग क्या करें, we went towards most of the first responders. फर्स्ट रिस्पॉन्डर से मुराद वो लोग जो कि कॉमनली पब्लिक के इंटरेक्शन में आते, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस वाले, अपने मेट्रो मेट्रो एम्प्लॉइज, डीआरडीएल, ये जगह पे वी वेंट टूवर्ड्स देम एंड वी taught them the basics of first aid. बेसिक्स ऑफ फर्स्ट एड से मुराद अगर ब्लीडिंग हो रही तो हाउ डू यू टाई अ टॉर्निकेट, अगर फ्रैक्चर हो गया तो हाउ डू यू डू स्प्लिंटिंग, पॉइजन बाइट से कैसे डील करना, बर्न स्किन से कैसे डील करना, एंड सीपीआर के बारे में। तो दिस कम्स, दीज कैन बी काइंड ऑफ वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज, या फिर वेरी सिंपली जस्ट डूइंग अ फ्री हेल्थ कैंप कैन बी अ वॉलंटियरिंग एक्टिविटी ऑल्सो। कैन यू प्लीज गिव अ कंपैरिजन? अच्छा मनीषा, टेल मी ना, आपको कंपैरिजन किस चीज में चाहिए? मतलब आप टाइम बेटर कौन सा है बोल रहे हैं, या फिर बेटर प्रिपेयर्ड कब रहते बोल रहे हैं? ये क्वेश्चन ऑलरेडी कोई पूछे थे एंड आई वाज नॉट एबल टू आंसर देन आल्सो। कैन यू एलैबोरेट ऑन दिस क्वेश्चन प्लीज? हाँ देखिए, अगर आपके सेकेंड ईयर के बेसिक्स अच्छे हैं, विच आई एम कंसिडरिंग कि सबके रहना चाहिए, नहीं तो फिर क्या करें आप सेकेंड ईयर में। तो बहरहाल अगर सेकेंड ईयर के आपके अच्छे हैं बेसिक्स, तो आप थर्ड ईयर के स्टार्ट होने के 4-5 मंथ्स के अंदर एग्जाम लिख दे सकते। दैट विल बी योर मोस्ट आइडियल टाइम, क्योंकि अगर आप लिख दिए तो आपको आगे जाके you'll have a lot of playing field, you'll have a lot of time, जब आप जो है वॉलंटियर कर सकते हैं या फिर रिसर्च कर सकते हैं। बिकॉज एक बार स्टेप वन अगर आप लिख दिए तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में सेट हो गया ना कि मेरे को एमएलई ही करना है मिलके, तो दैट गिव्स यू द मोटिवेशन ऑफ डिसिप्लिन रिक्वायर्ड। स्टेप टू फाइनल ईयर से पहले देना मैं एडवाइस नहीं करता हूँ, बिकॉज फाइनल ईयर दिए, एटलीस्ट फाइनल ईयर दिए बाद स्टेप टू देना इज गुड। अब फाइनल ईयर का पढ़ते हुए दे सकते हैं आप। So what about medical conferences like Osmocon and AGS? Like you get participation certificates from there too. Yes, definitely. A section in your ERAS application that focuses on your presentations. Presentation का मतलब any oral presentation, paper presentation, poster presentation, ये चीजें का भी आपको बहुत ज्यादा वो रहता। And especially for us, Osmocon और AGS is a very good opportunity क्योंकि ये national level conferences है। तो अगर आप एनी ऑफ दिस कॉम्पिटिशन में जाके जीत सक रहे हैं तो दैट इज अ वेरी गुड एडवांटेज। स्पेशली जो भी लोग प्लैब ट्राई कर रहे हैं उन लोग का एक क्राइटेरिया रहता, वन ऑफ द क्राइटेरिया दैट गिव्स देम 2.5 या 3 पॉइंट्स की विनर ऑफ अ नेशनल लेवल प्रेजेंटेशन कंपटीशन। तो उसकी उतनी वैल्यू है स्पेशली फॉर प्लैब, एमएलई में ही बहुत काम आता है आपको। तो ये ऐसे कॉन्फ्रेंस डेफिनेटली अटेंड करिए। और अगर आप कुछ पार्टिसिपेट नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप बिल्कुल कम्पीट नहीं भी कर रहे हैं, एटलीस्ट यू विल मीट सम लाइक माइंडेड पीपल ना। आप नेटवर्क कर सकते हो, वहां से आपको लोग मिलते हैं जो मिली कर रहे हैं, तो यू कैन टॉक टू देम, यू कैन आस्क तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसा कर रहे हो मिलके। ओके, इन मायशा इज कंटिन्यूइंग इन टर्म्स ऑफ आप एमबीबीएस के स्टेज पर है, व्हेन इट इज मोर कन्वीनियंट। स्टेप वन थर्ड ईयर में लिख दीजिए। मैं सबको ये बोल रहा हूँ, अगर आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं है, अगर एमएलई नहीं भी करने वाले हैं, थर्ड ईयर में आप स्टेप वन स्टेप टू दे दो विदाउट एनी डाउट। जज़ाकल्लाह खैर सर, एब्सोल्युटली वर्थ अटेंडिंग द वेबिनार। शुक्रिया सो मच मैम। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, फिर मैं वापस स्क्रॉल कर रहा हूँ। सर वी डोंट हैव एनी वॉलंटियरिंग सर्टिफिकेट, हाउ मच वुड इट अफेक्ट? क्यों, वाई आर यू टॉकिंग सो नेगेटिव अबाउट इट? आप वॉलंटियर सर्टिफिकेट लीजिए ना, आपको करना ही नहीं है, अगर क्यों डिसाइड कर लिया आप? इट इज वेरी सिंपल, कहीं भी जाओ भाई, हम वॉलंटियर करते हुए जो बोलो, सर्टिफिकेट दे देते वो लोग। हाउ मच विल इट अफेक्ट बोलते हो, आपकी ईरास एप्लीकेशन में यू हैव अ सेगमेंट, अगर वो पूरा का पूरा एम्प्टी रहा तो डेफिनेटली जो भी आपका सीवी हाथ में ले रहे हैं, दे विल फील अरे ये तो एम्प्टी है ना, तो कुछ भी खाली मत छोड़िए। ओके, और कुछ?
एनी टिप्स? बहुत हेक्टिक हो जा रहा। हाँ, मैं हेक्टिक तो होता। इफ यू आर डूइंग समथिंग दैट इज deviating from your normal path, हेक्टिक तो होता, बट इट इज सिंपली मोर रिस्क मोर रिवॉर्ड टाइप का सिचुएशन है वो। ज्यादा मेहनत करिए, आपके ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलते, उतना ही है। हेक्टिक तो होता, बट आई डोंट नो डुएबल। मैं तो करा और डुएबल ही दिखा, और हमारे साथ वाले बहुत कर रहे हैं, एवरीबॉडी सिंग्स डुएबल। सर, आर सर्टिफिकेट्स एट इंटर एंड स्कूल लेवल वैल्यूएबल? इसके बारे में ज्यादा कुछ डेटा तो अवेलेबल नहीं है। अगर रहे तो अच्छा है, बट आई डोंट थिंक दे विल आस्क यू अबाउट दिस। हाँ, बट इफ यू हैव एन ऑल राउंड पर्सनालिटी है आपकी, तो यू कैन डेफिनेटली शो इट ऑफ। यू कैन टेल कि एट द इंटरव्यू आप बोल सकते हैं कि इवन बिफोर आई स्टार्टेड माय मेडिकल स्कूल आई वाज सो एंड सो कैप्टन, या फिर मैं सो एंड सो में कम्पीट करती थी बल्कि। हाउ टू स्टार्ट रिसर्च फ्रॉम जीरो? अच्छा फैज, इसके बारे में मैं भी ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, अपन साथ में करेंगे कभी। क्योंकि मैं खुद अभी कुछ भी पब्लिश नहीं करा अब तक। आई एम ऑल्सो ट्राइंग, बट फर्स्ट स्टेप विल बी आपके फैकल्टी में से अप्रोचेबल कौन है ये आइडेंटिफाई करो, एंड देन उनको जाके पूछो कैन वी डू समथिंग बोल के। श्योर महेशा, थैंक यू। Sir, I'm not from Hyderabad. How could I join MCKS and any other volunteer programs? It will depend ना, in whatever state you are, आपके स्टेट में कुछ ना कुछ मिल जाता है आपको। आप गूगल पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, रेडिट पे जाइए। रेडिट इज अ वेरी गुड फ्रेंड फॉर एनीवन ट्राइंग फॉर द यूएसएमएल, क्योंकि यहाँ पे लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं, एंड यू कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दैट। यू हैव टू सर्च फॉर अपॉर्चुनिटीज अराउंड यू। या फिर व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जॉइन ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन है आमसा, अमेरिकन सॉरी एशियन मेडिकल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन, AMSA, आमसा। वो लोग मोस्टली लोग काम ऑनलाइन ही करते हैं। तो अगर दैट इज समथिंग दैट बेनिफिट्स यू, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। या जी। इज देयर एनी बेनिफिट इफ एनी डॉक्टर ऑफ यूएस रिकमेंड्स अस? जी नौमान साहब, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है वो, बट दैट डॉक्टर शुड बी इन द यूनिवर्सिटी वेयर यू आर अप्लाइंग ना। आप जहाँ अप्लाई कर रहे हैं, अगर वहां पर है तो ही कैन गिव योर रिकमेंडेशन कि ये फलां शख्स जो है, या तो मेरे पहचान के है, फलां शख्स को मैं देखा काम करते हुए, ही डज अ वेरी गुड जॉब। तो इन दैट सेंस इट विल बी गुड। व्हाट अबाउट IMGHH? व्हाट इज IMGHH? IMG हेल्पिंग हैंड्स। निसार, कैन यू प्लीज फुल इसको एब्रीविएट करिए ना। अच्छा, IMGHH, मैं बस उनके इंस्टाग्राम के स्टोरीज वगैरह देखा। आई एम नॉट श्योर हाउ इज फंक्शन, बट मोरलेस वो लोग एक पेड ऑर्गेनाइजेशन है। दे आर नॉट अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वो लोग हर चीज के लिए चार्ज करते हैं। या Any more doubts, or shall we conclude? Shall सर, we go आपका towards इंस्टाग्राम हैंडल? conclusion? उमेर, मैं इंस्टाग्राम का हैंडल दिया तो क्या गारंटी है मेरे को रात तक 100 मैसेजेस नहीं आने वाले हैं। बहरहाल अब्दुल हफीज ही है मेरा, अब्दुल हफीज _01 ऐसा कुछ है शायद, देख लीजिए एक बार। इज इट वर्थ पेइंग टू गेट रिसर्च पब्लिश्ड? देखिए, रिसर्च ऐसी चीज है जो कि आपको मास्टर करना ही है। आजकल के दुनिया में देर आर नो लॉन्गर क्लिनिशियंस। सिर्फ प्योर क्लिनिशियन कोई नहीं है। क्लिनिशियन के साथ पीपल आर नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स रिसर्च क्लिनिशियंस। मतलब जैसे कि आपके असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर से खुद ले लो, वो लोग को भी रिसर्च करना बहुत जरूरी है टू गेट देयर प्रमोशंस। तो वैसे ही आपको भी पब्लिश करना सीखना ही है कभी ना कभी। तो वाई डू वांट टू गेट इट पेड? अगर आपकी एप्लीकेशन डेट बहुत करीब आ गई और आपको कुछ भी पब्लिकेशंस नहीं है, तो एट दैट टाइम यस इट इज एडवाइजेबल टू बाय रिसर्च, बट अभी आपके पास अगर टाइम है तो मत खरीदिए। ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ, क्योंकि अगर अब नहीं करें आपको आगे से जाके करना ही है। ओके सर, हाउ टू अप्लाई फॉर गल्फ कंट्रीज? हाउ टू अप्लाई फॉर गल्फ कंट्रीज बहुत आगे की बात हो गई, इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे इस पे अपन। जैनब पूछ रहे थे, अपन बाद में बात करेंगे इसके ऊपर। दिस इज अ वेरी बिग टॉपिक, और मैं भी ऐसा 100% इन्फॉर्म नहीं हूँ उसके ऊपर। जैसा जैसा मेरे को मालूम होता आई शेयर विद यू। सर, आप एक सीवी बिल्डिंग पे भी जूम मीटिंग करते? यस इंशाल्लाह, लेट्स टॉक ऑन दैट आल्सो। Sir, does participating in any quiz give us any advantage in CV? Yes, anything you do. Basically, USMLE teaches you not to sit still. आप खाली एक किताबी कीड़े के जैसा किताब में बैठ के नहीं बैठ सकते। Anything that you do above and beyond that will add to your CV. Okay.
और सर इज देयर एग्जाम फॉर यूएई और कैन वी डायरेक्टली प्रैक्टिस इन एमबीएस आफ्टर यूएई? नहीं, यूएई का भी अपना ऐसे एग्जाम है एंड दैट इज आल्सो वेरी सिमिलर टू यूएसएमएल ओनली। वहां पे भी स्टेप 1 स्टेप 2 देना है, वहां पे भी इंटरव्यू देना है आपको, उसी के बाद आपको जो है रेसिडेंसी और प्रैक्टिस मिलती है। सर कुड यू डू अ सेशन ऑन स्टेप 1 प्रिपरेशन? डेफिनेटली फजल, अपन स्टेप 1 पे भी बात करेंगे। सर व्हाट अबाउट केएस एंड खतर? अगेन सेम थिंग, लाइसेंसिंग एग्जाम लिखना पड़ता। Okay, we'll come to the conclusion for the session. On behalf of IMSA, I extend my sincere gratitude to Dr. Mohammad Abdul Hafiz for delivering an exceptional informative session on navigating complexities of USMLE. Your commitment to mentoring and supporting the next generation doctors is truly inspiring, sir. I would like to express my heartfelt appreciation to IMSA for their dedication and efforts in organizing this online session. Their commitment to facilitating educational opportunities for the medical community is commendable, and this session has undoubtedly enriched our knowledge and skills of the participants. Last but not the least, thanks to all members who joined for us for this insightful session. We appreciate your commitment, learning, and professional development. Together, we continue to strengthen our community of medical professionals, united in our pursuit of excellence. Thank you for your patience listening. I hope this session has benefited you in some or the other way. Other way. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala for the success in all our future endeavors of our life. Ameen. Subhanakallahumma wa bihamdi wa एक ashhadu सेकेंड, anna एक जी जी या बोलिए तो मेरे को बस इतना बोलना था कि इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू यूएस 27th ऑफ दिस मे, और इंशाल्लाह electives वगैरह पे भी मैं ढूंढ रहा हूँ, तो आई एम ऑन लुक फॉर द लुक फॉर दैट आल्सो, एंड इंशाल्लाह आई विल बी अप्लाइंग इन दिस साइकिल। तो आप सबसे अदबन गुजारिश है कि हमें भी आपकी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह वॉट एवर एंड हाउ एवर आई सक्सीड, आई विल ट्राई टू ट्रिकल इट डाउन ऑन टू माई ब्यूटीफुल जूनियर्स, आप, ताकि मैं जितना सक्सेसफुल हूँ आप लोग मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल हो, और आप आपके जूनियर्स को भी बता सके। ठीक है, एक रिक्वेस्ट है कि डो नॉट गेट कीप एनीथिंग। आपको कुछ मालूम हो रहा है तो और लोगों तक पहुंचाइए, अपने अंदर रख के कुछ फायदा नहीं है। यू विल ओनली डेवलप एज मच एज योर सराउंडिंग डेवलप्स। आप अगर कुछ सीख रहे हैं तो साथ में सबको सिखाइए इंशाल्लाह। अच्छा, ये ठीक है, मेरी आवाज भारी हो रही है अब। आई विल लाइक टू टेक योर लीव। जज़ाकल्लाह उमर, जज़ाकल्लाह फारिहा, जज़ाकल्लाह एमएसए फॉर दिस सेशन। दैट्स इट। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. Hope to see you soon again, inshallah. Program has been concluded. Jazakallah khair, everybody. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.